Hello. In this video, I'm going to discuss solution of Jest 2022 physics paper. So let's start with question number one. It says for a system of unit mass, a dynamical variable follow the relation. So this is the basically equation of motion, you can say, where x is the position of the system, t is time, and x naught is some initial position. So what is the force acting on the system? So using this equation of motion, which is given here, we have to find the force acting on the system. Here, mass of the system particle is 1 actually. Okay, so let's use it. So this is basically velocity. So we can write it like this: v square equal to this is k x naught square and plus x dot square. These are basically constants. Okay, minus this is k x square. So to calculate force, we need actually acceleration. What I'll do is I'll differentiate this equation with respect to x. So let's differentiate it with respect to x. So that gives us v and dv by dx. Since these are constants, so these will give 0, and this is 2kx. Now from here 2 and 2 can be cancelled. So we get here v dv by dx is equal to minus kx. And we know that v dv by dx is acceleration actually. So we get here acceleration is equal to minus kx. Now acceleration we have gotten, so we can calculate force is equal to mass into acceleration. This is Newton's equation of motion. Mass is given to be 1 and acceleration is minus kx. So therefore we get force is equal to minus k into x. That is the force acting on the system. Okay, so therefore correct answer is this one. Okay, now this is question from probability. It says the probability that you get a sum m from a throw of two dice, two identical fair dice, is pm. So sum equal to m. So probability of getting sum equal to m is pm. If the dice have 6 faces labeled 1 to 6, which of the following statement is correct? So we have to basically tell which probability of getting sum equal to 4 or 9, which two probabilities are equal. Okay, so let's see, in the option there is probability of getting 3 given, probability of 5 given, the above probability of 4 is given. Okay, so let's calculate one by one these things. So probability of getting 3, so 3 we can obtain. So this is sum equal to 3. So let's say this is dice 1 and this is dice 2. So we can get sum equal to 3 if we get 1 in dice 1 and 2 in dice 2, or 2 in dice 1 and 1 in dice 2. Okay, so these are two ways by which we can get sum equal to 3 on 2 dice. Okay, so therefore probability of getting 3 will be equal to, so these are the favorable ways basically. So there are two ways, and we know that total number of elements in sample space will be 36 actually. Okay, so actually when you throw two dice, there are total 36 possible outcomes. Okay, so that's the probability. Now let's calculate probability of getting 4. We can get 4 in these ways. Both this is dice 1 and dice 2. So if we get 1 in dice 1 and 3 in dice 2, or 2 in dice 1 and 2 in dice 2, and or 3 in dice 1 and 1 in dice 2. So these are the three ways by which we can get sum equal to 4 on 2 dice. Okay, so therefore probability of getting 4 will be equal to, there are three favorable ways. Okay, and total number of ways is 36. Okay. Similarly, let's calculate probability of getting 5, because 5 is also given in option. So 5 we can obtain if in dice 1 we have, and this is dice 2. So in dice 1 we have 1, here 4, or 2, here we have 3, and here we have 3, and here we get 2, or here we have 4, and here we get 1. Okay, so basically, so these are the 4 ways by which we can get sum equal to 5. So therefore probability of getting 5 will be equal to basically 4 divided by 36. Okay, now let's see probability of getting 6. This we are calculating. So dice 1 and dice 2. So sum equal to 6. Okay, so in dice 1 if we have 1, here we should have 5, and then if here we get 2, here we should get 3.
4. If we get here 3, then here also should get 3. And here if we get 4, here we should get 2. And here if we get 5, here we should get 1. So there are total 5 ways. Okay, so probability of getting 6 will be equal to 5 divided by 36. Okay, now probability of getting, similarly we can calculate probability of getting 6. So 6, oh sorry, 6 we have calculated. So now 9 is left actually. So probability of getting 9, let's calculate. So dice 1 and dice 2. So 9 we can obtain. Suppose in dice 2 we get 3. Then here we should get 6. Because if we get 2 here and here 6, we won't get 9, right? So we are starting with 3. So now in dice 1, if we get 4, here we should get 5. In dice 1, if we get 5, here we should get 4. And that's all. And in dice 1, if we get 6, in dice 2, we should get 3. Okay. So 3, 4, 5, 6. These are 4 ways actually. So probability of getting 9 will be equal to 4 divided by 36. So therefore, we can see that probability of getting 5 was also 4 divided by 36, and probability of getting 9 is also 4 divided by 36. So therefore, probability of getting 5 and 9 are actually same. So this is the correct option. Okay. Now, let's see. This is a question from mechanics. It says a particle of mass m is moving in a circular path of constant radius r such that centripetal acceleration is varying with time as this is the centripetal acceleration. So we know that centripetal acceleration is written like this: v square by r, and that is given to be k square r and t square. So from here we can calculate velocity or speed, we can say. So speed we are getting is equal to k, r, and t. That's the speed. So from here we can calculate tangential acceleration. Tangential acceleration is dv by dt. So we get here k into r. That's the tangential acceleration. Now, since this particle is moving in a circle, see, if a particle moves in a circle, you see at any instant of time, its velocity is in this direction. Okay, it has a uh, centripetal force acting in this direction. These two are perpendicular to each other. So therefore, power generated by centripetal force is zero actually. Okay. Now there is a force in tangential direction also. Okay, because we have a tangential acceleration, and this tangential force is in the direction of velocity. So therefore, it will generate some power. Okay, so question here is power delivered to the particle. So we'll get power is equal to actually force dot velocity. So if you take dot product of centripetal force and velocity, you'll get zero because the two are perpendicular to each other. Okay. So therefore, we'll use only tangential force. So we'll get here tangential force and velocity. Now you see tangential force is mass into tangential acceleration, and velocity we have. So mass is given to be m, and tangential acceleration is here k into r. This is tangential acceleration, and velocity is actually k, r, and t. So therefore, we get power is equal to, you see here, this is m, and we get here k square, r square, and then t. That's the power. Okay. So therefore, correct answer is m, k square, r square, t. The C option is correct actually. Okay. So this was the third question. Now, so we'll be solving all questions, almost all questions, except questions of electronics. Okay, because I don't teach electronics presently. Maybe after some time. So presently, I don't teach electronics, so I don't have practice of electronics questions. So that's why I'll ask the other teacher who teaches electronics to provide solution of electronics portion. Otherwise, I'll solve all of the questions, okay, in this video. So it says the front end of a train moving with constant acceleration passes a pole with velocity u, and its back end passes the pole with velocity v. With what velocity does the midpoint of the train passes the same pole? So question is something like this. Suppose there is a train. Okay, this is a train, and suppose there is some pole.
this pole. So train is crossing this pole with speed u, and its back end crosses this pole with speed v. So question is, its midpoint, ये जो midpoint है, इस ये कितने स्पीड से क्रॉस करेगा इसे? अभी तो सभी पॉइंट का स्पीड इसका u है, तो ये भी u है, ये भी u है. ओके, तो एक्चुअली हम लोग ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट, वी कैन से लाइक दिस, सपोज लेंथ ऑफ द ट्रेन इज l, and here to here distance will be l by 2. We can say that, see, end of the train passes this pole with speed v, so we can simply say that when train covers a distance l, its speed becomes v, and when train covers distance l by 2, then we have to tell what its speed will be. Okay, so according to question, see, according to question, we can say that v, since acceleration is constant, so we can use this formula, v square equal to u square plus 2a, and distance covered is l. Okay, so when this train covers, when this end reaches the pole, its speed becomes v. That means when train covers a distance l, its speed becomes l actually. So इसीलिए हम यहाँ पे final speed is this, initial speed is this, acceleration we have assumed to be a. Okay, so here we can write like this, v square minus u square is equal to 2al. Let's call it equation number 1. Okay, now when midpoint, suppose midpoint reaches this pole, its speed suppose becomes some v1. Okay, so now we'll write v1 square equal to u square plus 2a, and by that time distance covered will be equal to l by 2. So in place of distance covered, we are writing here l by 2. V square equal to u square plus 2as, that formula we are using. Okay, so therefore, now you see, here we can write like this, v1 square minus u square is equal to 2al and divide by 2. Let's call it equation number 2. See, we don't have to calculate acceleration. So what we can do, we can just divide these two equations, 1 and 2. So 2al will cancel out, and from there we'll get the answer. So let's divide 1 by 2. Okay, so if we divide these two equations, we are going to get v square minus u square is equal to, sorry, divided by v1 square minus u square is equal to 2 by 1. Okay, so just divide these two. Now do the cross multiplication. So we are getting v square minus u square is equal to 2v1 square or minus 2u square. So when you bring it to this side, it becomes plus. So you get here v square and plus u square is equal to 2v1 square. So therefore, v1 will be equal to root under v square plus u square and divide by 2. That's the answer. Okay, so these are some very simple questions. Okay, so that was the question number 4. Now let's see. The question says, a system with energy levels, question number 5, energy levels is in thermal equilibrium with heat reservoir at temperature 600 Kelvin. Okay. The energy gap between levels is 0.1 electron volt. Let P be the probability that system is in the higher energy level. Which of the following statement is correct? So this is a very basic question from statistical mechanics. Say suppose if there are two energy levels, E1 and E2, accessible to a system. So we know that probability of being in higher, okay, probability of being in energy state E2 is written as e to power minus beta E2 and divide by partition function. Okay, so where has it gone? So e to power minus beta E1 plus e to power minus beta E2. We can write this as, this is equal to, let's take e to power minus beta E2 common. So we'll get here e to power minus beta, sorry, plus beta, and here we get E2 minus E1 and plus 1. That's what we get. So now it says question, energy difference is given to be 0.1 electron volt, and 0.1 electron volt is equal to actually 11,600 Kelvin. Okay, so we can write it like this, 1 divided by, and here it is equivalent to temperature. Okay, temperature equivalent of electron volt is given, so we'll have to multiply it by kb, Boltzmann constant, to get energy. So we can write here e to the power 11, this is 11,600. This is 1 electron volt. So actually we have energy gap is 0.1. So here we'll have to multiply by 0.1. And now we'll multiply by kb and divided by
this beta is 1 by kBt. So T is actually, so this is kb and T is 600 Kelvin. Temperature is 600 Kelvin, it is given. And this is plus 1. Okay. So kb and kb cancel out. We get here. Okay, so that's what we get actually. So we are basically going to get here probability is equal to 1 divided by e to the power. Here we'll get 11.6 or divided by 6. That's what we get, right? And plus 1. So if you calculate all these things, I think, let me just check. No, I don't have. I think you get here 0.13. Okay, that's what you'll get. You can check this calculation. So method I have outlined. I think you'll get 0.13. 0.13 is actually something between 0.1 and 0.2. So that's why correct answer is this. Okay. I've done this calculation previously. Okay, so I don't have record here. So I think 0.13 it comes out to be. You can check that. Now let's move to another question. If question says, if mean and standard deviation of energy distribution of an equilibrium system vary with temperature as T to the power nu and T to the power alpha respectively, then nu and alpha must satisfy. So question says standard deviation, see delta E. Question says standard deviation of mean and standard deviation. So average E. This average E is proportional to T to the power nu. And standard deviation is proportional to T to the power alpha. Okay. So now nu and alpha we have to relate. Okay. Actually, there is a formula delta E is equal to root under some kBt square and CV. This can be written like this: kb and t square, and cv is written as temperature derivative of average energy. Okay, so now you see, if we put this here, this is proportionality actually. So we get here t to the power alpha, proportional to root under, here we have t square, and when you differentiate this, you get here nu and t to the power alpha, sorry, nu minus 1. So this T average we have put here. Okay. So now let's do one thing. Let's square both sides. So we get here T to the power 2 alpha proportional to, okay, this nu I'm leaving because we are not writing equality here. So this is just a constant. So we get here proportional to T to the power nu plus alpha, because ये power add हो जाएंगे यहाँ पे. Okay. So if you add the power, you get nu plus alpha. So just equate the two powers. You get here 2 alpha is equal to nu plus 1. That's the answer. Therefore, correct answer should be 2 alpha equal to nu plus 1. So this last option is correct. Now question, this is another question from statistical mechanics. It says adding 1 electron volt energy to a large system did not change its temperature, which is 27 degrees Celsius. So temperature is given to be 27 degrees Celsius, which is equal to 27 plus 273 Kelvin, which is equal to 300 Kelvin. Okay. Now, so whereas it changed the number of microstates by factor R. Okay, that's what question says. The number of microstates change ho gaya hai, theek hai? Again, here 1 electron volt is equivalent to 11,600 Kelvin. So questions R is of the order of. So question is, it is related to number of microstates. So what I'll do, I'll use Boltzmann formula. See, entropy is given by S equal to Kb ln omega. Now, was initially number of microstate was suppose W1, okay, omega 1, and here entropy was S1. Now, suppose entropy is S2 and number of microstates is omega 2. So let's calculate change in entropy. S2 minus S1 will be equal to Kb, and we'll get here ln omega 2 minus omega 1, which can be written as omega 2 by omega 1. Now, according to question, see, according to question,
omega 2 by omega 1 is equal to R है. Okay. So therefore, we'll write here change in entropy is equal to Kb, okay, and ln R. So therefore, Kb, let's write it like this. So R will be actually equal to, this will come down, and when you remove logarithmic term, you get exponential. So we get here exponential delta S by Kb. Okay. So we can write it like this. R is equal to this exponential and delta Q by T and change in entropy. Okay. At constant temperature and Kb. Now R is equal to this exponential, and energy given to the system is given to be 1 electron volt. So 1 electron volt is equivalent to this 11,600 and Kb. This is temperature equivalent of 1 electron volt. And here now we have Kb, and temperature is given to be 300 Kelvin. Okay, so Kb cancel out, and you get here R is equal to e to the power 116 by 3. So you can calculate this. Okay, it comes out to be of the order of 10 to the power 17, I think. That's what you get. Okay, this one. 10 to the power 17. You will get some 7 or something 7 into 10 to the power 16. Okay, so that is of the order of 10 power 17. Okay. Now let's move to another question. It says ratio of specific heat of electron in heated copper wire at two temperatures, 200 and 100 degrees Celsius is. Okay. So here you see, we know that electronic specific heat CE is proportional to temperature actually. So at two temperatures, C1 by C2 will be equal to actually T1 by T2. So T1 initial temperature was 200. So 200 plus 273, we use here temperature in Kelvin. Okay, and here you get 100 plus 273. So we get here 473 are divided by 373. So that we can calculate. Okay, let me just, I don't remember its answer. So let me just do it quickly. 473 divided by 373. It is given to, it is coming out to 1.268. So it is 1.27 actually. Okay, correct option is A. Now, this is another question. This is a question from electrostatics actually. It says a conducting sphere of radius r is placed in a uniform electric field E naught directed along. Recording to हो रहा है ठीक है. So the electric potential for outside points is given. This is the outside potential, where r is the distance from the center and theta is the polar angle. The charge density on the surface of a sphere is, okay, this is given in terms of theta. So question is something like this. See, suppose there is a conducting sphere and it has been placed in some electric field. So there was electric field, suppose in this direction. So now what happens? This is a sphere. Okay, so when you place the conducting electric field, this side some negative charge get induced. Okay, this side you get some positive charge. Okay, and because of these negative and positive charges, field outside doesn't remain E naught. Okay, field gets modified. So this question can be solved using boundary condition. Okay, so using boundary condition, potential is calculated. Okay, by solving Poisson equation. Okay, or you can say Laplace equation. So this potential has been calculated. We don't have to calculate this potential. Now using this potential, we have to calculate the charge density. This जो negative positive charges यहाँ पे develop हो रहे हैं ना, that charge density we have to calculate. So here this direction is the direction of applied field. And suppose this is some point. This is at angle theta. Okay, so at this point theta angle we have to calculate the charge density. See, this is a potential outside. There is a concept related to conductor. Wherever there is conductor, okay, field just near the surface of the conductor is actually equal to sigma by epsilon naught, and that is also perpendicular to the surface. So here field will be exactly like this. Okay,
near the surface, field will be exactly perpendicular to the surface. Later on, it can bend and become like this. Okay. Here also, if you calculate, field will be something exactly perpendicular to the surface, and later on, it will go like this. Okay. So at far point, field direction of field will be same as the direction of applied field. Okay, at far point, but near the surface, it is exactly perpendicular. So perpendicular direction is basically radial direction. So we just have to calculate radial field. So we can say that ER near the surface of conductor must be equal to sigma by epsilon naught. Radial field. Okay, so radial field is actually minus dV by dr. Okay, this at r equal to capital R. Okay, so that must be equal to sigma by epsilon naught. You can call it radial field or normal field. Okay, even if you use complete gradient, if you write here minus gradient of V, okay, and you put R equal to capital R, then also you'll get the same answer, because in field is actually perpendicular to the surface, so there is no theta component of the field. Okay, ultimately you are going to get radial component only. Okay, so now you see here we have dV by dr, so we have to differentiate this potential. So there is R term over here also. So this R multiplies with this. So when you do this differentiation, you will actually get here E naught, and एक R यहाँ पे आ जाएगा. So उसका derivative से 1, you will get 1, and you will get here 1 R square, 1 by R square, sorry, R cube by R square. So when you differentiate that, you will get here 2 R cube by a small R cube. And this we have to evaluate at R equal to capital R. And there is a cos theta term. And this is equal to sigma by epsilon naught. Okay. Now put R equal to capital R. So this in these two R will cancel out. You will get 3 here. So sigma will become equal to 3 epsilon naught. This epsilon naught will multiply here. E naught and cos theta. So that's the charge density. Okay. So therefore, correct answer is this one. 3 epsilon naught E naught cos theta. Okay. Now, this is another question from electrostatics. It says a point charge Q is kept at distance d above an infinite conducting plane. What is the charge stored in the configuration? Actually, देखिए, electrostatic is very important topic for just exam. आप previous year papers देखेंगे तो electrostatic से repeatedly question पूछा गया है just exam में, ठीक है? See, the question is something like this. There is a grounded sheet, okay, and in front of it, a charge Q has been placed at distance d. So we know that in such situations, it is grounded, infinite sheet hai ye. So here, this side potential is 0, and electric field is also 0 behind the sheet. Okay, infinite sheet hai ye. Okay. The potential is 0 and field is also 0. Okay. Now, we know that because of this charge kept in front of this infinite conduction sheet, some induced charges develop something like this, okay, which has non-uniform distribution. And since we do not know the charge distribution, we cannot solve this problem. Okay, so therefore we use image method, and in image method we just assume there is a boundary and there is charge Q here, and which is at distance d, and we say that this effect of this sheet can be represented by a negative, an image charge minus Q, which is at distance d, because this image charge ensures that boundary condition is maintained. Okay, here potential at the boundary was 0. Here also you can check that potential at the boundary is 0. Now, potential in this side, we'll say that has to be taken to be equal to दिस इज जस्ट अ फिक्टिशियस सिचुएशन. ओके, अभी भी हम लेफ्ट साइड में कहेंगे पोटेंशियल और फील्ड हमारा 0 ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना. राइट साइड में दिस नेगेटिव चार्ज एक्चुअली हेल्प्स इन कैलकुलेशन फॉर राइट साइड. ओके, ऑन द राइट साइड ऑफ द शीट, नॉट फॉर द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में पोटेंशियल और फील्ड 0 ही है. ओके, so these details are there. Okay, now we have to, for this configuration we have to calculate the electrostatic energy. तो electrostatic energy हम लोग ऐसे calculate कर सकते हैं 1/2 summation and qi and vi. Okay, so 1/2 summation. Now when we put charge q, potential at its location will be calculated because of this charge. So this potential because of this charge will be equal to minus kq and divided by 2d. Now when you write this charge minus q, potential at its location is actually 0. Here potential was 0. Okay. So therefore we get here minus kq square on 4d. That's what we have. Okay.
So K we can write as K is actually 1 by 4 pi epsilon naught. So 1 by 4 pi epsilon naught. And here you get Q square upon 4D. That's the correct answer. Okay. This question can be solved by other method also. If you see Griffith's book, in that book, this question has been solved using force. Okay, but remember the method that Griffith has used is not a general method. उस मेथड को यूज करके आप अदर जो इमेज प्रॉब्लम्स होते हैं उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई द मेथड दैट आई हैव यूज्ड हियर इज एक्चुअली द जनरल मेथड, एंड दिस मेथड कैन बी यूज्ड to solve problems, any problem related to image method. Okay, that means what I mean is that किसी भी इमेज मेथड के प्रॉब्लम में अगर आपको एनर्जी निकालना है, यू कैन कैलकुलेट बाय दिस मेथड बट नॉट बाय द मेथड given in Griffith's book. Okay, that is a very particular method. Okay, so therefore correct answer is this one actually, B option. Okay, now this is another question from electrostatics. Okay, it says, I hope it is visible. 2-point charge, this is a conducting sphere. 2-point charges Q and 2Q and Q are placed inside two spherical cavities of equal radii r by 4 in a solid conducting sphere of radius r, as shown in figure. The cavity is placed along the diagonal at distance r by 2 from center. The electric potential at point P, this is point P which is at distance 3r by 2 away from the center along the same diagonal is given by. Okay. So we have to calculate potential. So if you learn about the electrostatic properties of conductor, you will come to know that when you put a charge inside the cavity of the conductor, you put charge Q here, तो यहाँ पे minus Q charge induce हो जाएगा और surface पे plus Q charge induce होगा. यहाँ पे -2 की put किया है, so on the inner surface of cavity -2Q charge will get induced, and on the outer surface +2Q charge will get induced. So we can say total +3Q charge will appear on the outer surface. And there is a unique thing about this about electrostatic property of conductor, that अब आप आउटसाइड में फील्ड या पोटेंशियल जो भी निकालेंगे ना, उसमें ये इनर चार्जेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है. Potential and field outside is calculated only by the charge on outer surface. Okay, तो जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो that potential will be calculated by charge on outer surface only. And since curvature of the sphere is uniform everywhere, this charge is uniformly distributed. So this whole system will behave as if there is uniformly charged sphere only. Okay, अंदर के charges जो हैं +2Q और यहाँ पे जो -2Q आएगा, उन दोनों का इन्फ्लुएंस कैंसिल आउट हो जाता है. ये Q और यहाँ पे जो इंड्यूस चार्ज -Q होगा, इन दोनों का इन्फ्लुएंस cancel out हो जाता है for outside point. Okay, so that's why at this point potential at point P will be just potential because of uniformly charged sphere which has total charge 3Q. So therefore it will be K and 3Q or divided by distance. Okay, so K is 1 by 4 pi epsilon naught, and this is 3Q, and distance from here to here is actually 3r by 2. So 3 and 3 cancel out. So you get here 1 by 4 pi epsilon naught, and here 2Q and divide by capital R. That's the potential. Okay. So therefore correct answer will be this one, 2Q. Yes, C option correct होगा इसका. ठीक है ना? 1 by 4 pi epsilon naught, 2Q by R. Now let's see. This is a question from mathematical physics, or question related to mathematical understanding. It says we have to calculate average of cos square theta. See, here cos square theta is not a planar. Theta is not a planar angle. Okay, here theta is being taken in 3 dimension actually. That's why you see it says theta and phi represent polar and azimuthal angles on unit sphere. So on unit sphere, when we define angle theta, theta is not a planar angle actually. Okay. तो अगर थीटा प्लेनर एंगल होता है तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर का एवरेज 1/2 हो जाता है. ठीक है ना, ओवर फुल साइकिल. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कॉस स्क्वायर थीटा एवरेज. So since it is in 3 dimension, so what we'll do is we'll calculate its average over solid angle, and we'll divide by total solid angle 4 pi. Okay, so this is equal to 1 by 4 pi, and here cos square theta and solid angle is defined like this: sin theta, d theta, and d phi. Okay. So since we are integrating on a sphere, okay, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम कोन पे इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट अलग हो जाएगा. ओके, हियर वी आर इंटीग्रेटिंग इट ऑन स्फीयर, सो देयरफॉर लिमिट विल बी समथिंग लाइक दिस.
we have cos square theta and sine theta and d theta, and here limit will be 0 to pi, theta limit, and phi limit will be 0 to 2 pi. So let's integrate it. 1 by 4 pi. When you integrate, I think you will get here 2 by 3. Okay, you can just substitute cos theta equal to t. Okay, you will get 2 by 3, and from here you will get, I think, 2 pi. Okay, so you will get 4 pi will cancel out, you get here 1 by 3. So average of cos square theta that we got here is 1 by 3. Okay, now we know that sine square theta is equal to 1 minus cos square theta. So if you want to calculate average of sine square theta, you can just take, this is constant, so we can just take average of cos square theta. So it is 1 minus 1 by 3, so that is equal to 2 by 3. So therefore average of sine square theta is 2 by 3 and average of cos square theta is 1 by 3. Therefore correct answer, average of cos square theta is 1 by 3 and sine square theta, this D option is correct actually. Now it says this is a function. Okay, you see this function is plotted, and now question says which of the following figure represents f3x. Okay, fx आप देखिए यहाँ पे, थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, सी सॉरी टर्न हो जा रहा है, ठीक, f of x का ये ग्राफ दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन इज f of 3x का ग्राफ कैसा होगा. ओके, see you can see here f of x is non-zero only between 0 and a, and after that ये 0 हो जा रहा है, ठीक है ना. हम ये कह सकते हैं f of x becomes 0. So we can say that in f of x, whenever argument this argument actually becomes more than a, then it actually becomes 0. So now if we define f3x, so therefore here also if argument becomes more than a, this will become 0. So we see that here if you put x equal to a by 3, okay, 3 cancel and argument becomes a. So whenever we can say that here argument will become, sorry, x becomes more than a by 3, this will become actually 0. Okay, so that's why, but overall the function is same. Okay, यहाँ पे जैसे आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, ठीक है, तो फंक्शन तो सेम है, बस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस है यहाँ पे. ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि in this one you see this function is non-zero only between 0 and a by 3. Okay, so because a by 3 के बियॉन्ड अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो आर्ग्यूमेंट becomes more than a, and for more than a it is actually 0. So beyond a by 3 it should become actually 0. तो ये इसमें ऐसा दिखा रहा है. और इसमें देखिए maximum value of the function is given to be 1, so here also the maximum value of the function should be equal to 1. Okay, so therefore correct answer should be this one actually. Okay, max, because function we are not modifying, we are just modifying the argument. Okay, function has not been modified, so overall the graph of the function will remain the same. Okay, बस हमें इसका domain modify हो रहा है, ठीक है ना. All right, so now तो ये other options है उसी question का, ठीक है. Now let's see, this is a question from mathematical physics, complex analysis का question है ये, ठीक है. The question says, you see, consider complex function 6z cube plus 3z square plus 2z plus 1. So what is the sum of the residues at its poles? Okay, you see the denominator is a polynomial of degree 3. So obviously there will be 3 roots of this. If we form a polynomial equation, we will get 3 roots of the denominator. So there will be actually 3 poles. Okay, so we can calculate residue at those poles and sum the 3 residues, and that will give us the sum of the residues, but that will take some time actually. अगर हम उस मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है. तो इसीलिए क्योंकि ये शायद 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सभी अप टू 25 1 मार्क्स क्वेश्चन हैं ये सभी, ठीक है, तो इसमें इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो व्हाट आई विल डू, सी इफ यू कंसीडर complex plane, this is x axis, this is y axis, or you can say imaginary z axis है ये, और ये real z axis. Okay, so you can calculate the poles. So poles will lie at some finite values of x and y. Okay, now if you consider, suppose an infinite sphere, suppose you consider an infinite sphere, its radius is infinite, then all the poles will lie inside this infinite sphere.
इस इन्फानाइट स्फीयर के अंदर ही लाई करेंगे। तो अब हम अगर देखिए इस इन्फानाइट स्फीयर पे कोई पॉइंट हम ऐसे z कंसीडर कर लेते हैं, ओके, देन इफ यू इंटीग्रेट दिस फंक्शन एफ जेड डी जेड, ठीक है, ओवर दिस इन्फानाइट सर्कल, ठीक है ना, दिस दिस सर्कल इज सी इंफिनिटी इसको बोल देते हैं, लेट अस कॉल इट सी इंफिनिटी, दिस सर्कल इज सी इंफिनिटी। तो इस कॉन्टूर के अंदर ही सभी पोल्स आ जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू कॉशी रेसिड्यू थ्योरम दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई आयोटा एंड सम ऑफ रेसिड्यूज, should get sum of residues here. Now, since we are doing integration on this circular path, we can write z equal to r e to the power iota theta. Okay. For circular path, we can write like this. Okay. Now here r is actually tending to infinity. Okay. So here from here, if you calculate dz is equal to, then you get on circle r is constant also. So you get here r e to the power iota theta and iota d theta. Okay. This you get. So let us put all these things here. Okay. So now what you get here is basically this integration fz will use the given function. Here you get 6 r cube and e to the power iota 3 theta plus, okay, iota 3 theta, this z we have put, okay. Now 3 r square e to the power iota 2 theta plus 2 r e to the power iota theta and then plus 1, okay. This we get, and in place of dz we'll write this r e to the power iota theta and iota d theta. This integration we are doing, okay. So we can just see variable is theta here, so we can just say we are taking limit 0 to 2 pi, okay, and that is equal to 2 pi iota and sum of residues, okay. Since integration is on theta, we can take limit for r, okay. r का लिमिट हम r टेंड्स टू इन्फिनिटी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. So if you take limit for r, see in the numerator you have r to the power 1, but in denominator you have r to the power 3, okay. So if you just take r cube common, and so you will get here 1 by r square, and when you take r tending to infinity, you will get 1 by infinity. So that will make this left side 0, okay. So if you take limit r tends to infinity, we'll get here left side is 0, and this is 2 pi iota and sum of residues. Okay, so from here we get sum of residues, okay, that is equal to 0. That's the answer. So this is a short answer. Otherwise, we can calculate residue at all the poles and sum them. Okay, that will also give the same answer. So therefore, correct answer is this one. Sum is 0. Now let's see. Question says, consider complex number z equal to x plus iota y. Where do all the zeros of cos z lie? See, cos z is equal to 0 दिया हुआ है, so therefore z is equal to, we can say 2n plus 1 and pi by 2. So this is real, okay. ये रियल z है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं these z lie on x axis, okay. So these z lie on x axis, and x equation for x axis is actually y equal to 0. So this implies that y equal to 0 है यहाँ, okay. Y is 0, okay. So therefore we'll say that all these z lie on y equal to 0 line, okay. On x equal to 0 line, on x equal to, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, y equal to, on y equal to 0, on the y equal to 0 line, ये हो. Okay, now this is another question. It is from quantum mechanics. Okay, the question says the wave function of the electron in hydrogen atom in a particular state is given. So obviously, this is the ground state of hydrogen atom actually. Okay, which of the following figure qualitatively depicts the probability PR of electron to be within distance r from the nucleus? Okay, ये probability versus r निकालना है, ठीक है ना. देखिए प्रोबेबिलिटी अगर आपको ये निकालना है ना पी ऑफ आर, तो ये बेसिकली इस तरह से निकलेगा पाई मॉडुलस स्क्वायर एंड हियर यू गेट डी टॉ एंड लिमिट आपको 0 टू आर लेना पड़ेगा, ठीक है ना. तो आर का जो लिमिट होगा यहाँ पे, थीटा का लिमिट तो ऑब्वियसली 0 टू पाई हो जाएगा, फाई का लिमिट 0 टू पाई, बट आर लिमिट विल बी 0 टू आर, ओके. तो so we can do that, okay. तो अगर हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेट करेंगे, we'll get a function, okay, and using that function we'll get p as a function of r,
Okay, so we'll get a function for p of r and we can plot that function. Okay, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. What we can do is there is no need to integrate this. Okay, what you can do is this. Suppose this is the nucleus. Okay, and let's draw a circle of radius r around it, because we have to find probability of finding electron within r. Okay, तो अब देखिए, देर आर टू रीजन्स. ओके, वन इज विद इन आर एंड द अदर इज आउटसाइड आर. ओके, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, उसके बाहर पाए जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी. नाउ सपोज वी श्रिंक दिस स्फीयर, सो इफ आर टेंड्स, अगर हम आर को टेंड्स टू जीरो कर देते हैं, दैट मीन्स दिस स्फीयर इज वेरी टाइनी. ओके, बहुत स्मॉल हो जाता है ये स्फीयर. तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो अवेलेबल स्पेस है वो बहुत छोटा होगा, बाहर का जो अवेलेबल स्पेस है वो बहुत बड़ा है. ठीक है, so obviously in that case probability of finding the electron inside will be very less. Okay, so when r tends to 0, probability will also tend to 0. Okay, and if we take r tending to infinity, तो ये स्फीयर बहुत बिग हो जाएगा. ओके, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बहुत बिग होगा, पूरे स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन तो फिर इसके अंदर ही होगा ना. तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो स्फीयर के अंदर ही आ रहा होगा, बिकॉज स्फीयर ऑक्युपाइज द होल स्पेस. ओके, if r tends to infinity, electron will definitely lie within this sphere. Okay, so therefore in that case probability will tend to 1. Okay, तो इसलिए हमें देखना है कि इस तरह का बिहेवियर कौन से ग्राफ में आ रहा है. ठीक है, तो r देखिए, r टेंड्स टू 0 में जैसे ये है, इसमें शायद अच्छी तरह से प्लॉट नहीं किया है, ठीक है ना. बट हियर जैसे कि ऑप्शन देखो दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना. ये 0 से हो सकता है प्लॉट कर, ये टाइप करने में ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना. तो ये 0 पे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना. और जैसे जैसे आर लार्ज हो रहा है, ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है ना. इसमें देखिए 0 में 1 दिया हुआ है, तो ये सभी गलत है. इसमें ऐसे इंक्रीज करके डिक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं है. व्हेन इस रेडियस ऑफ स्फीयर लार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ही होगा, ठीक है. बिकॉज इनफाइनाइट रेडियस जब हम कंसीडर करेंगे तो होल स्पेस को वो स्फीयर कवर कर लेगा, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रॉन फिर उसके अंदर ही होगा, ठीक है. तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है. सो इट वाज जस्ट अ लॉजिकल क्वेश्चन. ओके, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ भी ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है. इट वाज जस्ट अ लॉजिकल क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल फिजिक्स वी कैन से. नाउ, so this was question number, I think 16 था ये, है ना. हाँ, it was question number 16. Now this is question number 17. It says a thin film surrounded by air has index of refraction 1.4. A region of the film appears bright blue when white light is incident perpendicular to the surface. What might be the minimum thickness of the film? Okay, देखिए, this is actually question related to interference due to thin film. तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस है यहाँ पे, ठीक है ना. परपेंडिकुलर लिखा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि थिन फिल्म के केस में हमारे पास कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऐसा लिखते हैं 2 म्यू टी. अब पाथ डिफरेंस मान लीजिए, जो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो पाथ चेंज आता है, दैट इज लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू, लेट्स राइट 2 एन टी. दिस इज द condition for constructive interference. Okay, so we get here, you take 2n, sorry, we get here actually n lambda, right? Is the effective part difference. Okay, that should be equal to n lambda. Okay, so here you get 2 mu t or is equal to 2n minus 1 or into lambda by 2. That's what you get. So from here we can calculate t. So if we calculate t here, we get t is equal to 2n minus 1 and lambda by 4 mu. Okay, so that is t. So if we take minimum value of t, we will get sorry, n, we will get minimum t. Okay, तो t minimum के लिए हम लोग यहाँ पे n equal to 1 put कर देते हैं, because 0 we cannot put, otherwise we'll get negative. Okay, so let's put n equal to 1. Okay, so we'll get here lambda upon 4 mu. Okay, so therefore lambda is given to be here 400 nanometer. ठीक है, नैनोमीटर में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है. 4 इंटू और दिस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन टू बी 1.4. ओके, सो यू कैन सी दिस इज एक्चुअली 100 divided by 1.4. Okay, so if you just divide, you will get something, I think 70 point something. Okay, तो 71 पॉइंट समथिंग आंसर इसका आता है, ठीक है ना. वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है. तो टी मिनिमम 7 समथिंग 71 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, नैनोमीटर. तो क्लोजेस्ट आंसर इन दैट केस इज एक्चुअली दिस वन, 70 nanometer. Okay, that is the correct answer.
ठीक है. Now here it says trajectory of a particle which undergoes simple harmonic motion on a plane is shown in figure. The ratio of frequencies of motion along x and y axis is given by. So this is basically Lissajous figure obtained by superposition of two SHM in x and y direction. Okay, तो हमें बताना है कि जो x डायरेक्शन में SHM हो रहा है और y डायरेक्शन में जो SHM हो रहा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है. मतलब कुछ ऐसा होगा, देखिए x इक्वल टू, सपोज कर लीजिए हम ऐसे लिखते हैं, सम a और साइन ओमेगा एक्स और इंटू टी, और y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है b साइन ओमेगा वाई टी प्लस सम फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दिस. सो इफ यू एलिमिनेट टाइम फ्रॉम हियर यू विल ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन. ओके, तो यही ओमेगा एक्स बाई ओमेगा वाई, सॉरी ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई का रेशियो निकालना है. तो हम लोग जानते हैं ओमेगा एक्स बाई ओमेगा वाई आपको कैलकुलेट करना है ना अगर, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एन वाई बाई एन एक्स. Okay, so this ny by nx is basically number of intersection on y-axis and divided by number of intersection on x-axis, or you can just simply say that this is number of intersection on a line which is parallel to y-axis, and this is number of intersection on a line which is parallel to x-axis. What you can do is you can just draw a line parallel to y-axis, okay, and you can draw a line parallel to x-axis. Now you can see here, अगर ये clear नहीं है थोड़ा इसको नीचे से draw कर दीजिए ऐसे, ठीक है. So now you can see here intersection on y axis is दो intersection यहाँ पे, दो यहाँ पे और दो यहाँ पे. So this is there are actually 6 intersection on y axis. Okay, and x axis पे देखेंगे तो दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, चार हो गए, 6, 2 8, 2 10. So there are total 10 intersection. Okay, so therefore you get here 3 by 5. Okay, so therefore correct answer is this one. ठीक है, so ratio of frequencies is 3 by 5. Okay, let's move to another question. It says an ideal diatomic gas at pressure P is adiabatically compressed so that its volume becomes 1 by n times the initial value. The final pressure of the gas, ठीक है, final pressure of the gas will be, see this is very basic question, 11th 12th लेवल का क्वेश्चन है ये. ठीक है, adiabatic कंप्रेशन की बात हो रही है, तो adiabatic प्रोसेस में हम जानते हैं P टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है. ठीक है ना, तो वी गेट हियर P initial V initial to the power gamma is equal to P final V final to the power gamma. Okay, now it says an diatomic gas है, तो diatomic gas में डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग, आइडियल diatomic gas है 5 ले लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके, ठीक है, सो यू विल गेट गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, so you will get here 7 by 5 if you put 5 here. Okay, so therefore now you see फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P दिया हुआ है. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई है टू द पावर गामा इज इक्वल टू पी फाइनल हमें निकालना है, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो वी इनिशियल और डिवाइड बाय एन है. ठीक है, टू द पावर गामा. वी इनिशियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो पी फाइनल जो आ रहा है हमारा, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इंटू एन टू द पावर गामा आ रहा है. ओके, दैट्स व्हाट वी गेट. तो गामा का वैल्यू बस 7 5 पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, दिस वन we get P final is equal to P into n to the power 7 by 5. So therefore correct answer is this one, A option. Okay. Okay, so now question number 20. It says a beam of high energy neutrons are scattered from a metal lattice where the spacing between the nuclei is 0.4 nanometer. To see quantum diffraction effects, the kinetic energy of neutrons must be of the order of. ठीक है ना, तो देखिए क्वांटम इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए जो डिब्रोगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, डिब्रोगली वेवलेंथ, दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पेसिंग. ये स्पेसिंग के ऑर्डर में होना चाहिए. तो डिब्रोगली वेवलेंथ हम लोग ऐसे h बाई पी लिख देते हैं, दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पेसिंग. स्पेसिंग को हम कुछ भी मान लीजिए लिख देते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे करो, इसको हम जो है ना ऐसे लिखते हैं, डिब्रोगली वेवलेंथ शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्पेसिंग, वी आर राइटिंग डी हियर. ओके, तो नाउ तो लेट्स सी, हम P इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 2mk, where k is the kinetic energy. Okay, so let's put here h is equal to root under 2m or into k, that is equal to d. So from here we can calculate k is equal to, this will become h square upon 2m
or into d square. So we can put the values here. K is equal to h का वैल्यू आप पुट करोगे 6.63 into 10 to the power minus 34, ठीक है, and this whole square. Now 2 times mass of neutron is 1.67 into 10 to the power minus 27, and d is given to be this d spacing, which is zero point 0.4 nanometer. So this becomes 0.16 or into 10 power minus 18 nanometer, 10 power minus 19, उसका स्क्वायर कर दिया हमने 10 power minus 18. Okay. So now if you calculate all these things, you get here k is, तो आप ये कैलकुलेट करके देखेंगे, this comes out to be actually of the order of milli electron volt. See, this is अभी जो निकल रहा है ना, ये जूल में है. This is जूल. तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू फर्दर डिवाइड इट बाय 1.6 into 10 power minus 19. इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो फिर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये 10 का पावर को ही सिर्फ ऐड करके देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ऑर्डर. ओके, इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, दैट्स व्हाट. सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके. Now this question number 21, it says consider 8 electrons confined in 1d box of length d. What is the minimum energy for the system allowed by Pauli exclusion principle? Okay. So electrons हैं, these are spin half particles, so one spatial quantum state will be occupied by 2 electrons. Okay, so it is something like this. This is 1d box. Okay, width is d. So here there are some quantum states, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, and so on. So there are 8 actually. So 2 electron will come here, up and down spin. Okay, so this is the minimum energy state actually. Okay, so therefore we can write minimum energy, E minimum, will be equal to pi square h bar square n square upon 2m or into d square, and there will be summation on n equal to 1 to 4, and we'll have to multiply by 2 also because each energy state is occupied by 2 electrons. Okay, so these 2 will cancel out, so you get here pi square h bar square and divide by m into d square, 2 and 2 cancel out, and you get here summation n equal to 1 to 4 and here n square. All right, so let's put the values. So pi square, and this is h bar square is actually h upon 2 pi, this is whole square, and divide by m into d square we get, and now you just sum here 1 plus, you will get here 2 square plus 3 square plus 4 square. Okay, so therefore what you get here is pi square, and sorry, pi will cancel out actually. Okay, so you get here h square upon 4m into d square, and this side you get 30. Okay, so we are getting here 15 h square upon 2m into d square. That's the answer. Okay, so therefore correct answer is this one, 15 h square upon 2m into d square. It was very basic question. Okay, now another question. It says consider 5 identical spin half particles moving in 3-dimensional harmonic oscillator potential. So degeneracy of ground state of the system. So again, question is related to ground state. See, this is 3D isotropic harmonic oscillator. Okay, frequency in x direction, y direction, and z direction all are omega actually. Okay, सभी में frequency, सभी direction में जो frequency of oscillation है that is omega. Okay, तो ये isotropic harmonic oscillator है. ठीक है, तो इसमें देखिए हमें 5 identical spin पार्टिकल्स को और ग्राउंड स्टेट हमें कंसीडर करना है. ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में आप जानते हैं कि इसमें nx इक्वल टू 0 होगा, ny इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जैसे हम लोग लिखते हैं ना एनर्जी लेवल्स, सो दैट इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा, और हियर वी हैव nx प्लस ny और प्लस nz प्लस 3/2. दैट्स व्हाट वी हैव. ओके, so for lowest energy state we have nx equal to 0, ny equal to 0, or nz equal to 0. Okay, now next higher available energy state is actually it is 100. Okay, see here you see all three are actually this is actually 000 state. Okay, and now it will be 100 state. 100 means
any of these can be 1. Okay, nx can be 1, ny and z can be 0. Ny can be 1, and so basically nx and nz can be 0. Okay, so there are three possibilities here. It can be 1 0 0 or 0 1 0, okay, or 0 0 1. Okay, so these are three special states available. So here we can put 2 electrons, and here now there are three special states which can accommodate 6 electrons. Okay, these are three degenerate states actually. Okay, so the maximum 6 electrons can be put into these three states. Okay, so basically we can say for electrons, six quantum states are available. Okay, this is spatial state, and for each spatial state there are two quantum states for up and down spin. Okay, so we can say that there are ग्राउंड हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट में देखिए क्या है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को तो हमें लोएस्ट स्टेट में तो पुट करना ही होगा. ठीक है, विल हैव टू पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी हैव 3 more इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हमारे पास 3 more इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पे हमें पुट करना है. सो फॉर 3 more इलेक्ट्रॉन्स देर आर 6 possible states, and out of those 6 possible states we have to choose 3 states. Okay, so therefore degeneracy जो यहाँ पे निकलेगी ना, so actually ये 3 special states हैं, और for each special state there are 2 spin states. Okay, so there are basically total 6 quantum states available here. Okay, so out of these 6 quantum states we have to select 3 quantum states, so that will be factorial 6 and factorial 3 by factorial 3. So this becomes 6 into 5 into 4, and ठीक है, और एक factorial 3 cancel होगा, and from here you get 6, so that gives us 20. Okay, so therefore correct answer is this 20. Okay, now this is another question from quantum mechanics. Okay, the question says particle is confined in an infinite potential well of the form, this is the potential well. Okay, see the potential is given to be some v naught or v naught, and it is x minus x square. Okay, and 0 otherwise. Okay, sorry, infinite otherwise. तो ये पोटेंशियल देखिए इस फॉर्म में है, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस. Sorry, let's plot it like this. This is suppose chord x-axis, and this is the potential. If you plot it, you will get something like this. Okay, at x equal to 1, this is 1, this is 0, and this side potential is infinity, and here also again now this side potential is infinity. Okay, so it is something like this. Okay, so this is the variation of potential actually. Okay, ये पोटेंशियल, ये जो ग्राफ बना हुआ है पोटेंशियल का ग्राफ है. ओके, तो अब हमें देखिए बताना है कि इसमें वेव फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा. दिस इज द प्लॉट फॉर वेव फंक्शन. ओके, so what we can do is see energy of the particle is greater than this v naught. Okay, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं. आई थिंक इट कम्स आउट टू बी v naught. ओके, ये v naught आएगा. तो नाउ ये ग्राफ बताना हमें कैसा होगा. ठीक है, तो देखिए ये जो वेव फंक्शन प्लॉट किया हुआ है ना, व्हाट वी कैन से दैट ये बेसिकली वेव फंक्शन को वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, वेवलेंथ वी राइट लेमडा इज इक्वल टू h by p. So this can be written as h and divide by root under 2mk. Okay, now k is kinetic energy, is actually energy minus, energy is given to be E naught या E जो भी है, ठीक है ना, E minus potential energy V of x. So if V of x is higher, kinetic energy will be smaller, and if kinetic energy is smaller, wavelength will be higher. Okay, so here you see यहाँ पे ये जो मिड रीजन है, मिड रीजन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. सो इफ पोटेंशियल एनर्जी इज हायर, काइनेटिक एनर्जी विल बी स्मॉलर, एंड काइनेटिक एनर्जी स्मॉलर, वेवलेंथ विल बी लार्जर. सो इन द मिड रीजन वेवलेंथ और स्पेसिंग जो होगा ना वेव फंक्शन में वो ज्यादा होगा. ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. देखिए जैसे इसमें जो है ना स्पेसिंग यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है. ठीक है ना, ये स्पेसिंग ज्यादा है, इधर यहाँ पे ये ज्यादा है स्पेसिंग. ये थोड़ा ड्रॉ प्रॉपरली नहीं किया हुआ है, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था उसमें प्रॉपरली ड्रॉ किया हुआ था. यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा है, ठीक है, इधर जो है ना स्पेसिंग कम होता गया है. ठीक है ना, so that's why this option is correct actually. Okay, we can on the basis of wavelength we can say that this option is correct. So this is the simplest way to check the correct option. Okay, just wavelength के basis पे हम इसको बता सकते हैं कि कौन सा correct answer. Okay, now this is a question from mechanics. Okay, I think this was
यहाँ तक आई थिंक इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अप डाउन हो गया है, ठीक है। यहाँ ये सभी क्वेश्चन जो है ना बेसिकली 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब जो है ना ये यहाँ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एक्चुअली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन जो है ना हम जैसे बोले थे ना इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन लास्ट में पुट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अदरवाइज 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, ठीक है। इसमें 23 डिस्कस हो चुका है, 2 क्वेश्चन अप डाउन कुछ हुआ है, ठीक है ना, वो अभी लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 50 क्वेश्चन हैं वो, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, वो छोड़कर बाकी हम सारे 50 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज a cylinder of radius r is constrained to roll without slipping on a horizontal plane. See, this is a rolling motion without slipping, okay, so pure rolling motion है ये, okay. Now under action of constant force, ठीक है, so distance d above which above the axis of cylinder in the process experiences frictional force F at the point of contact. So for what value of d the magnitude of F is minimum. Okay, देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना इसको हम ऐसा करते हैं कि Fs लिख देते हैं, बिकॉज ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है रोलिंग मोशन में वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डायनामिक्स, तो डायनामिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाता है। सो लेट्स राइट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज फॉर रोटेशनल मोशन। तो हम मान लेते हैं कि इसका सेंटर जो है ना ट्रांसलेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन AC एंड इट इज सपोज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ओके। तो रोलिंग मोशन है, तो रोलिंग मोशन में AC इक्वल टू इसका रेडियस r है, ठीक है ना, रेडियस इज r। तो रोलिंग मोशन में आप जानते हैं कि AC इक्वल टू अल्फा r हो जाता है। किसी भी जनरल ट्रांसलेशन मोशन में ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है, इन केस ऑफ रोलिंग मोशन इट होल्ड्स, ऑलराइट। तो दिस वी कैन यूज, ओके। सो लेट्स नाउ राइट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो हम पहले ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो देखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो F आप लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए F माइनस FS हो जाएगा इज इक्वल टू मास इसका m हो गया और एक्सेलरेशन इसका AC हो गया, ठीक है। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। रोटेशनल मोशन में नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा आपको ऐसे लिखना होगा। तो नेट टॉर्क इफ यू राइट, ठीक है, टॉर्क अबाउट सेंटर वी आर राइटिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, क्योंकि रोटेशन जो हो रहा है दैट इज अबाउट सेंटर, ओके। तो विल गेट हियर टॉर्क, देखिए दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका d है, तो F इंटू डी हो गया, ठीक है ना, प्लस इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा, ठीक है ना। एक्चुअली दीज टू फोर्सेस विल प्रोड्यूस टॉर्क इन सेम डायरेक्शन, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम टॉर्क को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एस इंटू आर, ये हो गया फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, और यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर आ रहा है, ओके। एंड दिस इज सॉलिड सिलेंडर एक्चुअली, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर बाई 2 और अल्फा, so alpha we can put from here, that will be AC or divided by R. So let's, one R will cancel out, let's divide both side by R. So you will get here F into D by R plus Fs is equal to MAC or divided by 2. Okay, that's what you get, MAC divided by 2. So let's call it equation number 2. See, we don't need acceleration, so what we can do is we can put the value of MAC from here into second equation. So we get here F D by R plus Fs is equal to, we get here F minus Fs और डिवाइड बाई 2, ओके। बी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2F इंटू डी बाई आर प्लस 2FS is equal to F minus FS. So let's, we wanted to calculate FS, right? So we get here F common and we get here 2D by R minus 1 is equal to 3FS. अच्छा ये जो है ना माइनस 3FS होगा। तो Fs जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है दैट इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 3 और 1 माइनस 2D by R, दिस वी गेट। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ Fs वी वांट टू कैलकुलेट, तो मिनिमम के लिए Fs को 0 ही कर देते हैं, ठीक है। सो फॉर मिनिमम Fs पुट Fs इक्वल टू 0, तो Fs को आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से D इक्वल टू कैलकुलेट हो जाएगा R/2, ठीक है। दैट्स द आंसर, यही आंसर है। Therefore correct answer is this R/2, C option, okay. Now
Another question. This is another question from mechanics. This is very basic question from mechanics. Okay. Let me tell you, this question is actually taken from S.C. Verma's book. Okay. ये भी क्वेश्चन जो है ना, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो एस सी वर्मा की बुक है, ठीक है ना। उस उसी लेवल का क्वेश्चन है ये। 11th क्लास के स्टूडेंट इस इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आईआईटी जेई वगैरह का जो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गिवन इन सेंटर मास चैप्टर, आप देखोगे एस सी वर्मा में अनसॉल्व एग्जाम्पल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इट इज क्वेश्चन से इज स्मॉल, एक्चुअली हम जब भी स्टूडेंट जो स्टूडेंट हमारे पास आते हैं उनको हम कई बार बताते हैं कि आप एस सी वर्मा की बुक को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप देखो उसी लेवल के क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं, मैकेनिक्स और मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। इट सेज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ A of mass m is free to slide on inclined plane of a triangular block B of mass 2m. Initially, both the blocks are motionless. The block A starts sliding under the action of gravity from the highest point of block B. This length is L actually, है ना? So this height, if you calculate, this is 30 degrees. So this height will be L sine 30. So it will become L root 3 by 2. No, L by 2 actually. It will become L by 2. L sine 30 degree. Okay. So question is, what is the speed of block B? This block B का स्पीड बताना है when block A hits the floor. जब ये मतलब फ्लोर को हिट द फ्लोर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बट जानते हो हिट द फ्लोर, फ्लोर को हिट करने के बाद आप इसका स्पीड नहीं निकाल पाओगे। ओके, क्योंकि देखिए फ्लोर को हिट करेगा ना तो ये कोलिजन कैसा होगा, मतलब बेसिकली इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, उन चीजों पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द फ्लोर, मतलब हिट करने के जस्ट पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम ऐसा शो कर देते हैं यहाँ पे कि मान लो ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंच चुका है, ठीक है ना। उस मोमेंट पे सपोज इस ब्लॉक की स्पीड इस डायरेक्शन में v1 हो गई है, ठीक है ना, और इसकी स्पीड इन दिस डायरेक्शन v2 है। तो ये जो v2 हम एज्यूम कर रहे हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू बी है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है ना। कि अगर बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नीचे आता हुआ दिख रहा है v2 स्पीड से। अब देखिए क्योंकि बी ब्लॉक इधर जा रहा है v1 से, तो इसकी एक स्पीड इधर भी होगी v1, क्योंकि बी के ऊपर रखा हुआ है ना। So this block will also translate in this direction with speed v1. Okay, so this block has actually two velocity, one down the plane and the other horizontal velocity because of the movement of b. Okay, तो ये दो velocities हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखिए इन दिस प्रॉब्लम सी ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक का जो एक्शन रिएक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट एक्सटर्नल फोर्स अगर हम चेक करें तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स, सो देयरफॉर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी कंजर्व्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, पी इनिशियल शुड बी इक्वल टू पी फाइनल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे। ओके, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, या फिर वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ से नॉर्मल एक्शन वगैरह लग रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों का जो नॉर्मल एक्शन है उसका कंपोनेंट एक आएगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इस पे भी आएगा इस डायरेक्शन में, तो नेट जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा ना सिस्टम पे वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन तो कैंसिल कैंसिल आउट होता ही है, ठीक है। तो पी इनिशियल तो सिस्टम पूरा रुका हुआ था तो जीरो हो गया। अब पी फाइनल लिखेंगे ना तो ये मास देखिए इसका 2m है, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा 2m और इंटू v1 और प्लस m इंटू इसका जब लिखेंगे ना तो देखिए ये दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो इसका एक वेलोसिटी इधर हो गया v2 cos 30 और ये वाला माइनस v1 हो गया, ठीक है। दैट्स व्हाट वी हैव। तो देयरफॉर यू गेट हियर m, तो m से डिवाइड कर दोगे m कैंसिल हो जाएगा, यू गेट हियर -2v1 एंड हियर v1, सो यू गेट हियर 3v1। ओके, सो वी गेट बेसिकली -3v1 और प्लस v2 cos 30 is actually √3/2 is equal to 0. So therefore, we get here v2 is equal to 2v1 divided by √3. नहीं नहीं गलत हो गया, we get here 2 √3 or into v1. That's what we get. v2 equal to. Okay. Now let's apply conservation of energy. So कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने के लिए हमें इस ब्लॉक की नेट स्पीड निकालनी होगी पहले, तो पहले हम इसका नेट स्पीड निकाल लेते हैं। देखो नेट स्पीड ऑफ एम, ये जो ब्लॉक ऑफ मास एम है,
ठीक है, तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू रूट अंडर, इट हैज टू वेलोसिटीज, सो दिस विल बी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और प्लस 2v1 इंटू v2 और cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज। सो ये एंगल लेना होगा दोनों वेलोसिटीज के बीच में, ठीक है ना। सो दैट इज cos 180 minus 30. So that is the net velocity. Okay, so let's put the values. Okay, v1 square plus v2 square का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। v2 square is this, ठीक है, so this will become 12 v1 square और minus 2 v1 and v2 is 2 root 3 v1 and cos 30, cos 180 minus 30 is minus cos 30 और cos 30 is root 3 by 2. So 2 to cancel out, okay, and you get here from 3 into 2 6, तो ये आ जाएगा बेसिकली 7 v1 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, दैट इज द नेट स्पीड ऑफ m. नाउ लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Okay, so we'll write here total energy initial is equal to total energy final. Since there is no friction involved, okay, so we can apply conservation of energy. Okay, gravity is conservative force, so under this conservative force and mechanical energy remains conserved. तो इनिशियली देखिए दिस ब्लॉक ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, हम इसको पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ले रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ब्लॉक बी का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग नहीं लिखेंगे बिकॉज इसका हाइट चेंज नहीं हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज नहीं होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वी विल नॉट राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी. ओके, सो हियर यू सी पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इस ब्लॉक का लिखते हैं ए का, तो दैट इज एम जी और एच की जगह पे L/2 लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू, नाउ स्टार्टिंग में तो दोनों काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है, बाद में काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ और m और इसका वेलोसिटी स्क्वायर, m की वेलोसिटी स्क्वायर करेंगे ना तो ये 7v1 स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे हाफ 2m, ये ब्लॉक बी के लिए लिख रहे हैं और इसकी वेलोसिटी है v1 स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी गेट. बाद में ये ब्लॉक ग्राउंड लेवल पे आ गया है तो इसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, ठीक है. सो हियर वी गेट, तो बस यही इसका आंसर होगा, ठीक है. नाउ यू सी हियर दिस इज mg L/2 इज इक्वल टू, ये आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा हाफ, तो एक्चुअली हर जगह कैंसिल हो रहा है, सो वी कैन जस्ट इरेज दिस. So this is mgl, half will cancel out, 7 plus 2 9 हो जाएगा, ठीक है ना. So this is 9 and here m और v1 स्क्वायर, ठीक है, तो इसीलिए m तो कैंसिल हो गया, तो v1 इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर gl और बाई 3, दैट्स द आंसर. ओके, so therefore correct answer is this root under gl by 3. Okay, b option is correct. So this was a question related to conservation of momentum and conservation of energy. Okay, now let's see, this is a question from central force motion. Okay, the question says a particle moving in central force field at r equal to 0 follows trajectory given by this. This is the equation of path actually. R is equal to e to the power minus alpha theta. ठीक है, तो क्वेश्चन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा है वो किस तरह से आर के साथ वेरी कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, देखिए इस क्वेश्चन को हम और भी कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, मगर शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट. ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट यूज करने के लिए हम पहले एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 u इक्वल टू 1/r, सो दिस बिकम्स 1/r, पुट करोगे तो अल्फा थीटा हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे बहुत शॉर्ट में आंसर आ जाता है ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, विच इज रिटन लाइक दिस d2u by d थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू माइनस m इंटू एफ और डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर. अगर आपको ये याद नहीं है ना तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो यू कैन गेट द आंसर, ठीक है, रेडियल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे एंड ट्रांसवर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम देयर वी कैन गेट द आंसर इजिली. ओके, तो देखिए d2u by d u इज दिस मच, इफ यू डिफरेंशिएट इट ट्वाइस यू विल गेट हियर एक्चुअली अल्फा स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल फिर से वापस आ जाएगा तो उसको u लिख देंगे और ये u हो गया इज इक्वल टू माइनस m इंटू एफ इज द फोर्स हियर एल स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर. So from here we get f is equal to, you just do cross multiplication, you get here alpha square plus 1 or into L square or into u cube or divide by m with negative sign. You can see force is proportional to u cube, therefore and u is equal to 1 by r, so we can say that force is proportional to 1 by r cube आ रहा है. That's the answer. ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका ए ऑप्शन होगा. ओके, now this is a question from quantum mechanics. It says for a one-dimensional simple harmonic oscillator for which ket 0 denotes the ground state, what is the value of
बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बीटा इन दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में बीटा का वैल्यू बताना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए सबसे इसमें क्लियर कर दिया गया है कि ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला जा रहा है, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट दिस। तो हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल एनर्जी ये होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका जो एवरेज वैल्यू होता है ना, यूजिंग वेरियल थ्योरम आप शो कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी का हाफ होता है। तो ये बेसिकली एच क्रॉस ओमेगा बाई टू और एन प्लस हाफ होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। तो यहां से देखिए आप एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लोग निकालेंगे अगर, तो ये बन जाएगा एच क्रॉस अपॉन एम, और एक ओमेगा बच जाएगा यहाँ पे, वो नीचे आ गया, ठीक है, और एन प्लस हाफ। सो दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच क्रॉस। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पे जीरो के ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकालते हैं अगर, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन टू एम ओमेगा। So that's what we have. Okay, we have put n equal to 0 here. तो ये ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकल गया। तो ये पार्ट हमारा समझ लीजिए कि आप कैलकुलेट हो गया। अब हम एलएचएस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, और दोनों को कंपेयर कर देंगे, विल गेट द आंसर। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं एलएचएस, जीरो ई टू द पावर आयोटा के एक्स, और ये zero. So this can be written like this, okay? Psi 0 star e to the power iota kx और psi 0 dx, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप जानते हो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में psi 0 अगर आप लिखोगे ना, तो इट इज सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, एंड यू गेट हियर e to माइनस m ओमेगा और इनटू x स्क्वायर अपॉन 2h बार, आई थिंक यही आता है, ठीक है ना। ये आपको करेक्ट लिखना होगा, ठीक है ना। अगर आप इसे करेक्ट लिख देते हैं तो आंसर इजिली आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और भी इसके अप्रोचेस हो सकते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है, बट आई फाउंड दिस वन मोर लॉजिकल, ओके। इस तरह से मतलब ज्यादा लॉजिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ए मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा, और इसे जब यहाँ पे पुट करोगे तो ई टू द पावर आयोटा के एक्स, एंड ये बेसिकली ये रियल वेव फंक्शन है, तो इसीलिए ये दोनों पावर जस्ट डबल, पावर डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम एम ओमेगा और एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एच बार, दिस यू गेट, और इनटू डीएक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके। नाउ हमें इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको, इसका जो एक्सपोनेंट है ना, पावर जो है यहाँ पे, उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये जो आयोटा के एक्स माइनस एम ओमेगा और एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय एच बार लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना। दिस माइनस एम ओमेगा और डिवाइड बाय एच बार हम ये कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए, ये कॉमन लेंगे तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हम यहाँ पे ऐसे 2x लिख रहे हैं, और आयोटा क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लोगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, आयोटा के और डिवाइड बाय, क्योंकि आपने यहाँ हमने 2 मल्टीप्लाई किया है तो आई डिवाइड बाय 2 ऑल्सो, ठीक है ना। और यहाँ पे ये टर्म कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे एक एच क्रॉस आ जाएगा और डिवाइड बाय एम ओमेगा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस टू ए एंड दिस इज लाइक बी, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस में आयोटा के और एच बार और डिवाइडेड बाय एम ओमेगा, टू एम ओमेगा इसका होल स्क्वायर, और फिर इसी का माइनस भी कर देंगे, आयोटा के एच बार और डिवाइड बाय टू एम ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस आई राइट, ओके। तो ये इतना आ गया। तो देखिए इसमें फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म मिल करके एक्स माइनस आयोटा के एच बार डिवाइड बाय टी टू एम ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स एक्चुअली इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये जो आयोटा और के और इंटू एक्स माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू एच बार जो लिखा गया था ना, इसको हम शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दिस वी कैन राइट लाइक दिस, माइनस एम ओमेगा और डिवाइडेड बाय एच क्रॉस, और फिर यहाँ पे एक्स माइनस, ठीक है, और आयोटा के और एच क्रॉस अपॉन टू एम ओमेगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस होगा, और इसका होल स्क्वायर से फिर एक माइनस आएगा, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा एक के स्क्वायर और इंटू एच बार, ठीक है ना। देखो ये एच बार स्क्वायर होगा, वो एक एच बार मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो के स्क्वायर इंटू एच बार, और यहाँ पे 4 आ जाएगा,
एक एम ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 4 एम ओमेगा, दिस वी गेट। ओके, तो दिस वी हैव गॉटन। ओके, तो ये जो न्यूमरेटर में, सॉरी, पावर जो था ना यहाँ पे, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू के कैलकुलेशन में ये जो पावर यहाँ पे आया था, उसको आप सिंप्लीफाई करके इतना लिख सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन हो गया, ठीक है ना। देखिए, तो आई एम जस्ट एडिंग ए स्लाइड टू इट। ओके, तो देखो यहाँ से हम लोग अब वापस इस पे आते हैं, ठीक है ना, दिस कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ऐसा होगा कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आयोटा के एक्स, तो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ए मॉडुलस स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में देखिए ये जो था यहाँ पे, उसी आयोटा के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई एच बार, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे पूरा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस एम ओमेगा डिवाइड बाई एच बार, और यहाँ पे एक्स माइनस आयोटा के, और डिवाइड बाई 2 m ओमेगा आयोटा के एच बार है शायद, 2 m ओमेगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, और फिर यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, कितना है देखें, माइनस और के एच स्क्वायर, ठीक है, तो दिस इज माइनस के एच बार अपॉन के स्क्वायर एच बार अपॉन 4 m ओमेगा है, दिस वी हैव, और इनटू dx, और दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो देखिए इस इंटीग्रेशन को जब आप करेंगे ना, तो इस टर्म में x है, इस टर्म में x नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, e टू द माइनस के स्क्वायर और h बार और डिवाइड बाई 4 m ओमेगा, और फिर यहाँ पे a मॉडुलस का स्क्वायर है, और ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई टू पावर माइनस m ओमेगा, और डिवाइड बाई h बार, एंड हियर x माइनस आयोटा के h बार और डिवाइडेड बाई 2 m ओमेगा, और इनटू dx, दिस वी गेट। ओके, अब आप देखिए क्या है कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी डन यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन, या फिर हम शॉर्ट में अगर बात करें तो ये गामा फंक्शन से इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब शॉर्ट में प्रिसाइजली बोलोगे तो ये कंटूर इंटीग्रेशन से होता है, बट गामा फंक्शन हम बोल सकते हैं कि गामा फंक्शन से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये जानते हो, जब आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो ये कोई एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं देता है, इट गिव्स यू सम रूट पाई के जैसा कुछ टर्म देगा आपको, ठीक है ना, मतलब एक नंबर देगा, ठीक है ना, नंबर। इट विल नॉट गिव यू एक्सपोनेंशियल, मतलब ये श्योर है कि इससे एक्सपोनेंशियल नहीं आने वाला है, ठीक है, डजंट गिव एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल बस यहीं पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको देखिए हम लोग कंपेयर कर रहे थे, 0 0, इसको कंपेयर किया जा रहा था 0 ई टू द पावर माइनस बीटा और एक्स स्क्वायर, ठीक है, का एक्सपेक्टेशन वैल्यू से, ठीक है ना, इससे कंपेयर कर रहे थे हम लोग ये दोनों, ठीक है। तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये हमारा निकला हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जगह ये लिख देते हैं, ठीक है। सो देयर फॉर एच बार डिवाइड बाय 2 m ओमेगा यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बीटा, और यहाँ पे है एच बार अपॉन 2 m ओमेगा, दिस, एंड दिस साइड यू सी, ठीक है, इसकी जगह हम ये लिख देंगे। अब इस साइड आप देखिए कंपेयर कर देंगे, यहाँ से कुछ फैक्टर्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल है और ये भी एक्सपोनेंशियल है, इन दोनों को कंपेयर कर दो अगर, तो हमारे पास मतलब हम ये कह सकते हैं कि बीटा एच क्रॉस अपॉन 2 m ओमेगा शुड बी इक्वल टू दिस माइनस के स्क्वायर एच बार अपॉन 4 m ओमेगा, ये होना चाहिए। तो आप देखिए एच क्रॉस 2 m ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर, सॉरी माइनस में है ये भी, ठीक है, मतलब ये प्लस करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों में माइनस कॉमन है, ठीक है। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर वी गेट बीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, दैट्स द आंसर, बीटा इक्वल टू के स्क्वायर बाय 2। So this was also a basic question, okay, related to understanding of the ground state of quantum harmonic oscillator. Okay. Now another question. This is also another question related to Schrodinger equation. Very basic question है ये. It says a particle of mass m moves in one dimension. ठीक है. The exact eigenfunction for the ground state of the system is this. Lambda is a constant and A is normalization constant. If the potential, ये important statement है, देखिए Vx vanishes at infinity, the ground state energy of the system is, ये क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में भी किया जा सकता है by comparing it to free particle, ओके, लेकिन क्या बोलते हैं, हम उस अप्रोच को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट अप्रोच डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें साई दिया हुआ है ये, तो साई इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 और ई टू द पावर लेमडा एक्स और प्लस ई टू पावर माइनस लेमडा एक्स,
और ये ए भी है यहाँ पे, ठीक है। तो साई कैन बी रिटन लाइक दिस, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ कॉस हाइपरबोलिक इक्वल टू ई टू पावर लैम्डा एक्स, ई टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डिवाइड बाय 2, तो 2 इधर आ गया, ठीक है। ओके, देखिए जब भी पोटेंशियल दिया होता है और वेव फंक्शन दिया होता है एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट एनर्जी एटसेट्रा, वी यूज श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में हम जानते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव यूज होगा, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखो डी साई बाई डी एक्स, वी आर कैलकुलेटिंग इट्स डेरिवेटिव, तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी -2a और e टू पावर लेमडा एक्स, और एक लेमडा भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेमडा एक्स प्लस, सॉरी, माइनस लेमडा एक्स इसका होल स्क्वायर होगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर लेमडा एक्स और माइनस ई टू पावर माइनस लेमडा एक्स। आप चेक करके देख सकते हैं, यू विल, आई होप यू विल गेट दिस, ठीक है ना। ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट इट्स सेकंड डेरिवेटिव। तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा, पहले हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें फिर नोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 4a और लेमडा स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आ जाएगा ई टू पावर लेमडा एक्स और माइनस ई टू पावर माइनस लेमडा एक्स। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग हाउ आई एम डूइंग दिस डिफरेंशिएशन, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है ना। और ई टू द पावर लेमडा एक्स और प्लस ई टू पावर माइनस लेमडा एक्स, इसका पावर हो जाएगा 4। I have differentiated the denominator. Now I am differentiating the numerator. Okay. तो numerator को differentiate करोगे ना, तो you will get here -2a। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा हमारा। तो numerator के differentiation से आएगा -2a lambda square, and here e to the power का डेरिवेटिव से प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, लेमडा स्क्वायर, और डिवाइडेड में बच जाएगा ई टू पावर लेमडा एक्स, इससे लेमडा एक्स और प्लस ई टू पावर माइनस लेमडा एक्स, बस इतना ही बचेगा, ठीक है ना। So this is second derivative. Okay. Then the question is related to potential vanishes at infinity. तो हम यहाँ पे x tending to infinity limit ले लेते हैं, ठीक है ना। तो x tending to infinity limit लोगे ना, तो d2 psi by dx square, okay, what will happen, x tending to infinity में ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, e to power minus lambda x, ठीक है। तो ये जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, ये तो टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पावर 2। एक हुआ लग रहा हमारा, एक मिनट देखें, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किए, तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया ना, यहाँ पे 3 आएगा पावर, ओके, यू विल गेट हियर पावर 3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप व्हेन यू टेक एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ई पावर 2 लेमडा एक्स बचेगा, यहाँ पे ई पावर 3 लेमडा एक्स, इसको ऊपर ले जाओगे, ठीक है ना, तो ई पावर माइनस लेमडा एक्स हो जाएगा, और यहाँ से भी वही होगा, ई पावर माइनस लेमडा एक्स। तो ये 4a माइनस 2a हो जाएगा, तो बेसिकली यू विल गेट हियर 2a लेमडा स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक है, दिस यू विल गेट। ओके, नाउ लेट्स यूज श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में आप ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी h बार स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस v ऑफ x और इंटू साई इज इक्वल टू e साई, this you write. Okay, now here again we are taking limit extending to infinity. तो extending to infinity में आप देखिए, ये जो टर्म है ना, it is varying like this, so it will go to 2a lambda square और e to power minus lambda x, ठीक है। t टेंडिंग टू इन्फिनिटी में देखिए, ये टर्म और ये टर्म दो दो, ये तो एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है, इट इज डिकेइंग एक्सपोनेंशियली। आप यहाँ से देख सकते हैं, वेव फंक्शन जो है ना, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये जीरो हो जाएगा, तो इट विल एक्चुअली बिकम 2a और e to power minus lambda x, ठीक है ना। wave function will actually this will survive as extends to infinity, this term will become zero. Wave function is decaying exponentially, ठीक है, wave function decay कर रहा है exponentially, but this term is also decaying, so this term will be much smaller compared to this term because this is only exponentially decaying term. तो इस term को हम जीरो कर देंगे, is equal to एनर्जी, और यहाँ पे wave function आ गया हमारा 2a और e to the power, ठीक है। अच्छा, देर वॉज दिस टर्म ऑल्सो, ये तो हमने सेकंड डेरिवेटिव इसका से पुट किया है, तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड में यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं, दिस इज माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2m, ये माइनस है, ये तो सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू हम पुट किया था, ठीक है। और यहाँ पे 2a इंटू पावर माइनस लेमडा एक्स आ रहा है, ठीक है। ये वे फंक्शन जो एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी में ऐसा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे दोनों साइड से,
ठीक है ना। ये 2a e⁻⁻x 2a e⁻⁻x कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी जो बच रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से देखिए लेमडा स्क्वायर बच रहा है और यहाँ से ये बच जा रहा है, ठीक है। ये जो फैक्टर था प्री फैक्टर माइनस h⁻² / 2m। ओके, सो दैट्स दी आंसर। तो ये एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज माइनस लेमडा स्क्वायर h⁻² / 2m। ओके, it can be done as I mentioned in the beginning. It can be done in shorter way also, but this is the precise method. Okay, all right. Now this is a question related to Lagrangian. It says Lagrangian of a particle of unit mass is given by L equal to this much. ठीक है, तो हमें इसमें Hamiltonian find करना है. So let us calculate generalized momentum. Px equal to del L by del x dot. Okay, so that is equal to, when you differentiate it, you get here x dot minus, we are differentiating it with respect to x dot actually. ठीक है ना, del by del x dot. So from here you get x dot, this term becomes 0, and from here you get 2x and 2 to cancel out, so you get here x actually. Okay, so this gives us x dot equal to px minus x. Now using Legendre transformation we get Hamiltonian, so Hamiltonian is equal to x dot, ठीक है। So Hamiltonian is equal to x dot and px minus Lagrangian. Okay, so x dot and px minus Lagrangian we'll put here 1/2 x dot square, ठीक है, minus x square और plus 2x into x dot, ठीक है, ये आ रहा है, that is the Lagrangian। यहाँ पे प्लस है, वो थोड़ा बोर्ड का रिस्पॉन्स थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है, कभी कभी डिले हो रहा है थोड़ा। तो ये बेसिकली हमारा Hamiltonian। Okay, so let's combine these two, this x dot and this x dot. Okay, we'll get here Hamiltonian is equal to, लिखने में प्रॉब्लम होने लगी है, h is equal to this x dot, अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसा होगा, x dot is common and here we get px और minus x। Okay, see here, वो अभी x आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, यहाँ पे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होने लगी है। Okay, I think it will come। ठीक है, तो यहाँ से x डॉट हमने कॉमन ले लिया है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो दैट्स व्हाई वी गेट px minus x। लेट मी राइट हियर x। ठीक है, सो नाउ वी गेट हियर माइनस x dot square divided by 2, and this 2 and 2 cancel out, so you get here plus, नहीं ये टर्म माइनस माइनस प्लस, so you get here x square or divided by 2। okay, this one minus minus plus। So now we'll put the value of x dot. X dot is here px minus x. So when you put here px minus x, you get px minus x whole square. Here you get px minus x whole square by 2. So when you subtract the 2, you get here px minus x whole square or divided by 2 or plus x square by 2. Actually, answer is not given in this form, so we can open it. So if you open it, you get here px square by 2 or plus minus 2ab term gives you x into px, and plus you get x square by 2 from here and x square by 2, so that gives you x square. So that's the answer. Okay, so therefore correct answer is this one, p, I think not this one, this one, px square by 2 minus px plus x square, this one, a option। Okay, now this is another question from statistical mechanics। It says energy of two, so ये mistake है यहाँ पे, using लिखा हुआ है, ये icing है, two icing spins is given by E का वैल्यू इतना दिया हुआ है, at certain temperature T probability that both spins take +1 values is 4 times than they take -1 values। So what is the probability that they have opposite spins? Okay, see here, let's see, if we write spin S1 and spin S2 and energy, what are the possible energy states that we are getting here? Let's calculate। So if spin 1 is
S1 is 1 and this is 1. So if you put 1, 1 here, you get here actually minus 1, and here you also get minus 1. So you get minus 2. If you write here 1 and this is minus 1, so this becomes 0 and this becomes 1. If you write here minus 1 and here 1, this again becomes 0 and you get here 1. And now here, if you write both minus 1, this becomes minus 2. So this becomes actually plus 1 and this becomes minus 1. So this becomes 0. Okay. So these are the energy states. Okay. So therefore, now we can calculate the partition function. Okay, partition function we can calculate here. Okay. So question is probability of getting at certain temperature, probability of getting both spins up. Okay, so both spins up is plus 1 is this. So if both spins are plus 1, then energy is minus 2. So probability of getting basically we can say energy is equal to minus 2. That will be equal to e to the power माइनस ई बीटा ई हम लोग लिखते हैं तो ये 2 बीटा ई हो जाएगा, ठीक है ना, 2 बीटा, बिकॉज एनर्जी इज -2, ठीक है ना, यहाँ पे एनर्जी -2 है, डिवाइड बाय जेड, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनर्जी इज इक्वल टू -2 और बोथ स्पिन्स +1, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ स्पिन्स -1, ठीक है। सो बोथ स्पिन्स -1 का अगर निकालेंगे तो बोथ स्पिन -1 में आप देखिए ये आ रहा है, ठीक है ना, दिस, ठीक है। तो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्चुअली, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है e टू द पावर 0, ठीक है, माइनस ऐसे लिखते हैं ना, e टू पावर माइनस बीटा इंटू ई अब बाई जेड, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये e की जगह 0 लिख देंगे तो ये e टू पावर 0 हो जाएगा बाई जेड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेज दिस प्रोबेबिलिटी इज 4 टाइम्स दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा e टू द पावर 2 बीटा by z is equal to 4 times e to the power 0 by z. So z cancel out. So e to the power 4 beta, sorry, 2 beta is equal to 4. So that means e to the power beta is equal to 2. That's what we are getting. Okay. Now, what is the question? So what is the probability that they have opposite spin? So when they have opposite spin, energy is 1. Okay. And there are two possible states for this. So probability of opposite spin actually, or you can say probability of getting energy equal to 0. So probability of getting energy E equal to, sorry, 1, okay, is equal to 1. So that will be equal to e to power minus beta E. But since there are two states, so we'll multiply, we can say degeneracy of this state, this energy state is 2. So 2 or divide by Z will write here, Z. So Z will be actually अच्छा यहाँ पे हमें z लिख देना चाहिए था, ठीक है, चलो z हम लिख देते हैं। सो दैट इज समेशन ऑफ e टू पावर माइनस बीटा ई आई एंड हियर summation on ei. Is that okay? And obviously if you want you can write degeneracy gi. So that will come out to be when you put e equal to 0 here you will get 1 plus, when you put e equal to 1 there are two degenerate states, so in place of degeneracy we can write 2 to e to power minus beta, and when you put e equal to -2 you get here e to power b 2 beta. Okay, so these are the, this is the partition function. We can write here e to power, you can see 1 plus 2 or e to power minus beta and plus e to power 2 beta. So let's put the values. Okay, e to power minus beta is actually, e to power beta is 2, so e to power minus beta will be equal to 1 by 2. So here 1 plus this is 2 and it is 1 by 2 and plus e to power 2 beta is 4. So this cancel out, this cancel out, you get here 1 by 6. Okay, that's the correct answer, 1 by 6. Okay, now let's move to another question. This is a question again from image method. So there were two questions from image method in this paper. Okay, it says a point charge q is fixed at point A inside inside a hollow grounded conducting spherical shell of radius r at distance a from the center. Force on sphere in due to presence of the point charges. Okay, so there is point charge q fixed at point A inside a hollow conducting spherical shell of radius r at a distance a. So distance a दिया हुआ है from center C. See, the question is something like this. There is a sphere. So there is a sphere. Let's say it is grounded, and we have put this center is C, and we have put a charge q here, which is at distance a, small a.
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सभी जानते हैं कि इसका एक इमेज बनाना होता है हमें, ठीक है। हियर एक इमेज चार्ज आ जाएगा विच इज एट डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर बाई ए, एंड वेर आर इज द रेडियस, रेडियस इसमें आर दिया हुआ है ना, ठीक है, आर स्क्वायर बाई ए, और यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट इज माइनस क्यू इंटू आर बाई ए, दिस इज द इमेज चार्ज। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इमेज चार्ज होता है, चार्ज जब अंदर है तो इमेज चार्ज बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ स्फेयर पे जो फोर्स है ना दैट विल बी सेम एज फोर्स ऑन द इमेज चार्ज। तो हमें देखो इसमें क्या ना, फोर्स ऑन स्फेयर, फोर्स ऑन स्फेयर निकालना है, विल कैलकुलेट फोर्स ऑन इमेज चार्ज। देखो ये जो चार्ज है वो इस इमेज चार्ज को इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, तो ये फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो देखो ए टू सी है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा ना दैट विल बी अलोंग ए टू सी, ये एसी वेक्टर की तरफ होगा, ठीक है। तो एसी वेक्टर के लॉन्ग देखिए एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ है और एक इसमें दिया हुआ है, तो यही दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है, आइदर दिस और दिस। ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दीज आर टू पॉइंट चार्जेस। ओके, तो फोर्स निकालने के लिए सिंपली आप ऐसे लिख देंगे के क्यू वन की जगह क्यू हो जाएगा और क्यू टू की जगह इसका मैग्नीट्यूड लिख दोगे क्यू इंटू आर और डिवाइड बाई क्यू इंटू आर और बाई ए। अब यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर लिखना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ आर स्क्वायर बाई ए माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस इज आर स्क्वायर बाई ए, उसमें से एक ए माइनस कर देंगे, दैट विल बी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव। ओके, तो यही इसका फोर्स है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो के क्यू और इंटू कैपिटल आर और इंटू ए आ जाएगा, ठीक है ना, के क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यू कैन राइट आर माइनस ए और आर प्लस ए, तो यही आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा दिस, ठीक है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, ये ऑप्शन। Now, this is another question from electrostatics. See, most of the question that has been asked in EMT is from electrostatics actually. Okay. The question says a rectangular dielectric slab partly fills. तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि there are two capacitors. This has capacitance C1 and it is maintained at voltage V1 and this is maintained at voltage V2. ठीक है, और यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब को रख करके छोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा पूछा जा रहा है कि ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, ठीक है। देखिए जैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जैसे अगर एक सर्टेन वोल्टेज पे मेंटेन्ड है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक है ना, बिकॉज वोल्टेज इज गिवन सो विल यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसी को डिफरेंशिएट करके हम लोग फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फोर्स निकालोगे ना तो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है। तो फ्रॉम दिस साइड फोर्स जो होगा V1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, और इस साइड जो फोर्स, यहाँ पे फोर्स दो तरफ से लगेगा, इधर से फोर्स F1 लगेगा और इधर से फोर्स F2 लगेगा। आप जानते हो कि डायलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर जो है ना अपने इनसाइड पुल करता है, देयर इज इनवर्ट पुलिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द डायलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन यू प्लेस द डायलेक्ट्रिक स्लैब ए लिटिल आउटवर्ड फ्रॉम ए कैपेसिटर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक इनवर्ट पुल फोर्स लग रहा होता है, ठीक है ना। तो इधर से F1 लगेगा और इधर से F2 लगेगा इस, ठीक है। तो क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, इसमें V1 ग्रेटर है तो इसलिए ये V1 वाले की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। दिस फोर्स विल बी ग्रेटर एक्चुअली, F1 विल बी ग्रेटर देन F2 हियर, क्योंकि फोर्स वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन ऐसा होगा, द स्लैब विल नॉट मूव, स्लैब विल मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, ठीक है ना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्लैब विल मूव टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल। ओके, ठीक है। नाउ दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप थ्योरी, इट सेज G is a group of order 6, ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। E is the identity element and A is of order 3। A order 3 का मतलब ये होता है कि A का क्यूब करोगे ना तो दैट गिव्स यू आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो व्हाट कुड बी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बी, बी एलिमेंट बी का ऑर्डर क्या होगा, मतलब बी का कितना पावर लेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, दैट वी हैव टू टेल। ओके, देखिए इसके लिए क्या करना है कि व्हाट यू डू इज राइट ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल से बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए ये ई है, ए स्क्वायर बी और बी इंटू ए और बी ए स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड वी आर राइटिंग ए स्क्वायर बी बी ए एंड बी ए स्क्वायर। So what I'm going to do is I'm going to multiply this b with these elements. Okay, तो यहाँ से देखिए b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे तो b आ जाएगा, and now you will get here b into a and here you will get b into a square and here you will get b square and here you get b square a and here you get b square and a square. So we know that
when any element is multiplied with other element of the group, okay, we should get back the all the other elements of the group, okay। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना, वो ग्रुप के एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे बी तो प्रेजेंट है, यहाँ पे बी आ गया, बी ए है, बी ए आ गया, ठीक है, बी ए स्क्वायर, तो ये थ्री एलिमेंट्स तो जनरेट हो रहे हैं, तो रिमेनिंग थ्री जो है ना, इन थ्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तभी पॉसिबल होगा, जैसे यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर जो है ना, इसको आइडेंटिटी बनना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर जब आइडेंटिटी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर विल अगेन गिव यू ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर जहां जहां पे आ रहा है ना, उसको आइडेंटिटी करना होगा। इस बी स्क्वायर को आइडेंटिटी करोगे ना, तो बी इंटू ए आ जाएगा, बी स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये ई बन जाएगा, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ से क्वाइट क्लियर है कि ग्रुप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तभी होगा जब बी से हम इन सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे वापस ये एलिमेंट तभी आएंगे जब बी स्क्वायर को हमें आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। बी का पावर टू लेने पर आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे बी का ऑर्डर जो है ना वो टू है, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर टू हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ this is a very basic question. It is just related to differentiation. It says एक ऑपरेटर ये दिया हुआ है, एक ऑपरेटर ये दिया हुआ है, ठीक है ना, that act on set of polynomials, या किसी भी फंक्शन पे मान लीजिए एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। म्यू एंड रो आर कांस्टेंट, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि जे जीरो पे पहले, सॉरी एक्सएम इज सम फंक्शन यू कैन से, उस पर जे जीरो पहले एक्ट कर रहा है, फिर जे एम एक्ट कर रहा है। तो हम पहले ऐसा करते हैं कि जे जीरो देखिए ये लिखा हुआ है, इसको हम किसी फंक्शन पे एक्ट करा देते हैं। तो जे जीरो एक्टिंग ऑन सम फंक्शन एफ विल गिव अस एक्स इंटू डी एफ बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे रो प्लस रो इंटू एफ आ जाएगा, यू विल गेट दिस, रो इज कांस्टेंट हियर, ओके। अब देखिए तो ये वाला टर्म आ गया जे जीरो एक्टिंग ऑन फंक्शन। अब इसमें हम जे प्लस एक्ट कराते हैं, तो जे प्लस, ठीक है, सॉरी, जे प्लस एक्टिंग ऑन जे जीरो, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा जे प्लस इज दिस मच एक्स स्क्वायर, और सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, और डी डी एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ प्लस म्यू एक्स, ये एक्ट कर जाएगा इसके ऊपर, है ना, एक्स डी एफ बाई डी एक्स और प्लस रो ऑफ एफ, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऑपरेट कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या आ रहा है, ठीक है। सो लेट अस ऑपरेट दिस ऑन दिस वन, ठीक है। तो इसको इस पे ऑपरेट करोगे तो एक्स पे ऑपरेट करेगा तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। सो विल गेट हियर एक्स स्क्वायर और डी एफ बाई डी एक्स प्लस, अगर ये इस पे ऑपरेट करता है तो ये सेकंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, और ये एक्स और एक्स मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब हो जाएगा, और इट विल बिकम डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ इसको हम इस पे ऑपरेट कराते हैं, ठीक है ना। तो ये इस पे ऑपरेट कर जब करेगा तो यू विल गेट हियर प्लस रो इनटू एक्स स्क्वायर और डी एफ बाई डी एक्स, बिकॉज रो इज कांस्टेंट, ओके। नाउ दिस is getting multiplied with this, so mu x square, and you get here df by dx plus mu into rho और x into f, this is what you get, okay। तो ये आ गया हमारा ये टर्म, ये पूरा टर्म हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम पहले इस पे पॉलिनोमियल पे जे प्लस को ऐड कराते हैं। सो जे प्लस एक्टिंग ऑन सम फंक्शन, तो जे प्लस हमारा एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी एक्स हो जाएगा ये, ठीक है ना। फंक्शन पे जब एक्ट करेगा जे प्लस इज दिस मच और प्लस म्यू एक्स इंटू एफ, दिस वी गेट जे प्लस एक्टिंग ऑन सम फंक्शन। नाउ अब इसके बाद हम जे जीरो इस पे एक्ट कराते हैं। तो जे जीरो एक्टिंग ऑन जे प्लस एफ, so that is j0 is this much x or ddx plus rho, this is now acting on j plus f, so j plus f is this much x square df by dx plus mu x into f, this we get, okay। So let's operate this ऑन दीज टू टर्म्स, ओके। इसको इस पे ऑपरेट करोगे, पहले x पे ऑपरेट करेगा, 2x आ जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई होने पे 2x स्क्वायर और यू गेट हियर डी एफ बाई डी एक्स। जब इस पे ऑपरेट कर रहा होगा तो इट विल बिकम एक्स क्यूब और डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये जब इस पे ऑपरेट करेगा तो म्यू एक्स पे ऑपरेट करने पे तो डायरेक्टली एक्स इंटू एफ आ जाएगा, बिकॉज देर इज एक्स ऑल्सो, एक्स दिस एक्स विल बिकम वन। और जब इस पे ऑपरेट कर रहा होगा तो म्यू एक्स स्क्वायर और डी एफ बाई डी एक्स हो गया, दिस वी गेट, ओके। नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो प्लस
rho into x square, and here we get df by dx plus mu into rho into x into f. ठीक है, दिस वी गेट। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। तो अब हमें देखिए बेसिकली J0 J प्लस, मतलब ये कैलकुलेट करना है J0 J प्लस माइनस J0 एक्टिंग ऑन सम फंक्शन। तो बेसिकली ये जो टर्म है उसमें से इस टर्म को माइनस करना है। देखिए माइनस करेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा। तो पहला तो देखिए एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी एक्स, दिस ये माइनस होगा तो एक टर्म बच जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और डी एफ बाई डी एक्स। तो दिस टर्म वी हैव कंसीडर्ड, ये हो गया, ठीक है ना, ये दो टर्म। अब आप देखिए दिस टर्म और ये दोनों टर्म कॉमन है तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू सी, ये यहाँ पे देखिए म्यू एफ एक्स है, ठीक है। म्यू एफ एक्स इसमें नहीं है कहीं पे, देर इज नो म्यू एफ एक्स। ये टर्म देखिए म्यू रो एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस एक म्यू एफ एक्स बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और म्यू एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी एक्स, म्यू एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। और रो एक्स स्क्वायर डी एफ बाई डी एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा सिर्फ यहाँ पे देखिए ये जो म्यू एफ एक्स था ना वो बच गया इसमें से, और ये जो टू ट्वाइस ऑफ दिस था और ये सब्ट्रैक्ट होकर ये आ गया। तो हम यहाँ से एफ कॉमन ले लेते हैं, तो इट इज एक्स स्क्वायर और डी डी एक्स और प्लस म्यू इंटू एक्स और इंटू एफ, ये बच रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे यही टर्म था एक्स स्क्वायर डी डी एक्स और म्यू इंटू एक्स, दैट इज जे प्लस। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जे प्लस और इंटू एक्टिंग ऑन सम फंक्शन एफ। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना, दिस इज इक्वेलेंट टू जे प्लस एक्टिंग ऑन दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन इसका ही है। तो दिस वाज जस्ट ए डिफरेंशिएशन, ओके, नथिंग एल्स। Now, it is also a very basic mathematical question. It says if three real values, real variable x, y, and z evolve with time according to this equation, okay, then which of the following quantities remain invariant with time? Okay, तो इनवेरिएंट विद टाइम का मतलब हो गया कि हमें शो करना है कि इसमें से कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इन सभी को ऐड कर देते हैं। देखिए डी एक्स बाई डी टी और प्लस डी वाई बाई डी टी प्लस डी जेड बाई डी टी, इन तीनों को ऐड कर दीजिए आप। तो देखो इसको ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा एक्स वाई और माइनस एक्स जेड, प्लस ये ऐड करोगे तो वाई जेड और माइनस वाई एक्स वाई, ठीक है ना, प्लस ये जब ऐड करोगे तो जेड एक्स एक्स जेड और माइनस जेड वाई। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे ये सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए एक्स वाई और एक्स वाई प्लस माइनस में कैंसिल हो रहा है, एक्स जेड प्लस माइनस में वाई जेड कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू जीरो, सो वी कैन राइट लाइक दिस डी डी टी ऑफ, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी1 है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी1, करेक्ट इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ ऐसा तो कोई ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है और इसको एलसीएम वगैरह लेने पे भी ऐसा कुछ आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक और अप्रोच ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप ऐसा करिए, इसको एक्स से डिवाइड करिए तो ये बन जाएगा ऐसा 1/x और डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। वी गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। 1/x एंड डी एक्स बाई डी टी वी आर गेटिंग दिस, प्लस फिर उसी तरह से 1/y और डी वाई बाई डी टी प्लस 1/z और डी जेड बाई डी टी। तो इन तीनों को देखिए, हम इसको x से डिवाइड, ये टर्म इधर ले आए, अब इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये आएगा y, पहला टर्म से आएगा y माइनस जेड, सेकेंड से आ रहा है z माइनस एक्स और थर्ड से आ रहा है x माइनस वाई। तो अब आप देखिए y और y कैंसिल, z कैंसिल, x कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो दिस वी आर गेटिंग, ओके। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए डी एक्स बाई एक्स प्लस dy by y or plus dz by z, that is equal to 0. So now integrate it. So you get here ln x plus ln y plus ln z equal to 0. Sorry, is equal to some constant because we have integrated. So some constant c2 we can write. We can write here ln x y z is equal to some constant c2. Okay. So x y z will be equal to exponential c2. So that is also a constant. We can write it c prime. So we can say that x, y, z is equal to c primed है. This is our second equation and x plus y plus z is equal to this much. So let's divide the two. इन दोनों को divide कर देते हैं. If you if you divide one by two, you get here x cancel हो जाएगा तो 1/y plus z plus here
y cancel out, you get 1 plus zx plus 1 by xy. That will be equal to just c1 by c prime. Okay, c1 by c prime, and that is constant. So we are getting this answer. Okay, so this is the correct answer, the option. Now let's move to another question quickly. Some more questions. So this is another question. I think this question was also question 1 marks question. ये थोड़ा सा अप डाउन हो गया है, ठीक है ना? इसमें लिखा गया है container has 2 compartments. One compartment contains oxygen. See, it is oxygen at pressure P1, volume V1, and temperature T1. Okay. The second compartment contains nitrogen. See, oxygen, nitrogen, both are diatomic gases. Okay, so their degree of freedom will be same actually. Okay, so that we have to notice here. तो देखिए हम ऑक्सीजन के लिए ऐसे लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल टू N1 R T1. ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकल जाएगा P1 V1 बाई R T1. ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे तो ये हो जाएगा P2 V2 और बाई R T2. ठीक है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर? दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो टेम्परेचर, तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे इस तरह से था कि एक कंपार्टमेंट है, इधर मान लीजिए ऑक्सीजन था और इधर नाइट्रोजन था, ठीक है ना? तो दोनों को मिक्स किया गया है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो वॉल है ना एडिबेटिक है, इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू एनर्जी फाइनल. तो एनर्जी इनिशियल लिखेंगे तो ये ऐसा होगा F/2 और N1R T1, ये ऑक्सीजन का एनर्जी हो गया, प्लस इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है, तो F/2 और N2R और ये T2 हो गया. बाद में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरे सिस्टम का तो वही F/2 है, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो जाएगा R T. टेम्परेचर इज T नाउ, तो F/2 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर आप निकालेंगे, R भी कैंसिल हो जाएगा, तो N1T1 और प्लस N2T2 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2 हो जाएगा. ठीक है, तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ N1. ठीक है ना, N1 N2 का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2. R जो आएगा ना इसमें वो कैंसिल हो जाएगा, सो N1 का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से आ जाएगा हमारा P1 V1 और बाई T1 और प्लस P2 V2 और बाई T2. ठीक है, बस ये एलसीएम वगैरह लेकर के आप देख सकते हैं क्या आंसर आ रहा है. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है, दैट्स द आंसर. ओके, ठीक है, so this is 37. Let's quickly complete it. Now 38, it says a uniform rod of length 1 meter are connected to frictionless hinge. ये जो है ना यहाँ पे frictionless hinge दिया हुआ है, ठीक है. The hinge is held at a height and the other ends of the rods rest on a frictionless plane. ये frictionless plane है, ठीक है. Such that angle is 2π/3. यहाँ पे टोटल एंगल 2π/3 दिया हुआ है, तो हाफ एंगल जो होगा ना π/3 हो जाएगा. So if the hinge is released from rest, what is the speed of the hinge when it hits the floor? ये ऐसे मतलब छोड़ा जाएगा ना, देखो ये ऐसा सिचुएशन है, सपोज 2 रॉड्स हैं ऐसे, ठीक है ना? जब इसे छोड़ेंगे तो ये दोनों एंड इस पे ऐसे स्लाइड करेंगे, हिंज ऐसे नीचे गिरेगा, तो ये जब नीचे गिर करके यहाँ पे इसको कितनी स्पीड से हिट करेगा, ठीक है ना? दैट इज द क्वेश्चन हियर. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द हिंज व्हेन इट हिट्स द फ्लोर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 लेना है हमें, ठीक है. देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ पे हिंज में बोला गया है कि स्मूथ है यहाँ पे हिंज, दैट मीन्स ये फ्रीली ऐसे रोटेट कर सकता है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हियर. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है. तो देखिए रॉड जब नीचे आ रहा होगा ना, तो रॉड ऐसे करके थोड़ा टिल्ट हो रहा होगा, अभी मतलब एंगल, अभी कुछ एंगल बना रहा है प्लेन के साथ. ओके, लेटर ऑन इट विल बिकम हॉरिजॉन्टल एक्चुअली. सो रॉड इज बेसिकली रोटेटिंग एंड एज वेल सेंटर ऑफ मास नीचे भी आ रहा है. तो ये इस क्वेश्चन में रॉड का रोटेशन भी हो रहा है, क्योंकि अभी देखिए कुछ एंगल बना रहा है प्लेन के साथ, बाद में ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा व्हेन hinge is going to hit the floor. So we can say rod is rotating as well as translating, because center of mass is also coming down. No point of the rod is permanently fixed here. Okay, so there is rotation as well as translational motion here. Okay, दोनों तरह का मोशन है यहाँ पे. So there is general motion of the rod here. Okay, so let's first write the kinetic energy, potential energy, etc. ठीक है, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये मान लो इनिशियल एंगल ये π/3 दिया हुआ है, ठीक है. हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये मान लो y एक्सिस मान लेते हैं, सपोज दिस डायरेक्शन इज x एक्सिस, ये किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, लेट्स से, ठीक है ना. तो ये आप देखिए यहाँ पे ये एंगल भी थीटा होगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. इसके कोऑर्डिनेट सेंटर के हम XC और YC मान लेते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट किसी एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम. ओके,
At some instant of time its coordinates are xc and yc. तो देखिए ये हाइट हो जाएगा yc और ये डिस्टेंस हो जाएगा xc, इसको ऑरिजिन मान रहे हैं, ठीक है ना, xc। दिस लेंथ विल बिकम l/2, ये लेंथ हाफ लेंथ यहाँ से यहाँ तक l/2 और ये l/2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो ट्राइंगल्स ऐसे बनेंगे ना, यहाँ पे जैसे ट्राइंगल बन जाएगा ऊपर में, उस ट्राइंगल में आप साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस थीटा लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे तो वाई एक्सी निकल आएगा, ये भी l/2 होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, एक्सी विल कम आउट टू बी l/2 एंड कॉस थीटा एट सम इंस्टेंट ऑफ, ये इनिशियल मोमेंट पे नहीं लिख रहे हैं हम, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। दिस इज एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, एट इन सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें हम थीटा की जगह π/3 लिख देंगे तो वो इनिशियल मोमेंट का केस बन जाएगा। और अगर थीटा की जगह हम ऐसे देखो, जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, तो थीटा विल बिकम एक्चुअली π/2। ओके, तो π/2 पुट कर देंगे तो फाइनल मोमेंट हो जाएगा। ओके, अच्छा एक्सी निकल रहा है ना, ये डिस्टेंस हमारा एक्सी होगा, ठीक है। तो अच्छा फाइनल मोमेंट में ये हमारा थीटा इक्वल टू π/2 कैसे हो जा रहा है, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा π/2, तो ये हमारा नहीं, कुछ गलती हो रहा है यहाँ, कॉस साइन आएगा यहाँ पे, है ना, विल बी साइन। हम देख रहे हैं कि वो जीरो कैसे हो रहा है। फाइनल मोमेंट पे तो एक्चुअली l/2 हो जाना चाहिए ना, ठीक है, π/2 पुट करेंगे तो l/2 आ जाएगा। yc निकालोगे ना, yc ये वाले ट्राइंगल से निकाल लो अब, ठीक है ना, तो yc आ जाएगा हमारा l/2 और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये निकल गया। तो हम लोग देखिए, जैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ना रॉड का, तो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ऐसा निकलेगा, पर एक सिंगल रॉड का भी लिख रहे हैं एक्चुअली, दोनों रॉड को फिर ट्वाइस कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा हो जाएगा, mg और h की जगह ये हाइट लिखना होगा, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ले रहे हैं, ठीक है। तो हाइट में ऐसे वाई सी लिखोगे तो ये एम जी और एच की जगह l/2 और कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी में दो तरह काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले लिखते हैं, ठीक है। देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम, और यहाँ पे एक्स सी डॉट स्क्वायर होगा प्लस वाई सी डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम और एक्स सी डॉट, तो एक्स सी ये दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है ना। तो व्हेन यू डिफ्रेंशिएट इट यू विल गेट हियर l² by 4 एंड थीटा डॉट स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। एंड व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस यू विल गेट हियर l² by 4 थीटा डॉट स्क्वायर एंड हियर यू गेट साइन स्क्वायर थीटा, cos derivative cos will become sin. Okay, so that's what we are getting actually. Okay, so you take l² by 4 common. Okay, sin square plus cos square will become 1 actually. So translational kinetic energy will become actually equal to, ये बन जाएगा हमारा, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, दिस becomes actually equal to ml² theta dot square by 8. That is the translational kinetic energy. Now let's write rotational kinetic energy. So rotational kinetic energy of rod is half IC or omega square. So we can write here theta dot square. So this becomes equal to half, and moment of inertia of rod about center is ml² by 12 and theta dot square. This we write. Okay. So therefore total kinetic energy of single rod we are writing. Okay. Last में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी के लिए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो रोटेशनल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल करना होगा, तो ये हो गया देखिए ml² और थीटा डॉट स्क्वायर बाई 8 और प्लस यहाँ पे ml² थीटा डॉट स्क्वायर और बाई 24, ठीक है। तो एलसीएम ले लोगे 4 आ 24, इधर से आ जाएगा 3 + 1 4, मतलब इसका आ जाएगा 1/6 ml² थीटा डॉट स्क्वायर। यू विल get this total kinetic energy. Okay, so now total energy, let's write. So total energy if you calculate, we'll write potential energy plus kinetic energy is, potential energy is mg l/2 and here cos theta and plus 1/6 ml² theta dot square. Okay, and you multiply it by 2 because there are two rods, this side and this side. Okay, so we get here m common, okay, and we get here gl cos theta plus 1/3 and l² theta dot square. Okay, so that's the total energy. Now let's apply conservation of energy.
तो विल राइट total energy initial should be equal to total energy final. So initial is basically theta is equal to pi by 3 and final is theta equal to pi by 2. Okay, so let's put here. तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो देखिए mgl and cos pi by 3, so that is 1 by 2 और plus initial angular velocity is 0 actually. Initially rod was at rest, so initial angular velocity is 0. बाद में आप लिखेंगे तो gl cos pi by 2 will become 0, cos pi by 2 0. Later on we have to calculate this 1 by 3 and L square theta dot square. Okay, so now you see 1L will cancel out m. अच्छा m तो यहाँ पे भी है, m तो cancel out हो जाएगा, ठीक है ना. So you will get here theta dot is equal to 3g by L under root. I think this is what you get. अच्छा एक 2 का फैक्टर भी है यहाँ पे, तो there will be 2. Okay, this is what you get. So question was speed. तो देखियो जब ये हिट करने वाला होगा तो उसका स्पीड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, ठीक है. दिस हिंज का स्पीड हमें निकालना है, तो सॉरी हिंज इज मूविंग ओनली वर्टिकली. ओके, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें निकाल लेना है, ठीक है. सो दैट इज एक्चुअली वाई डॉट, वो वाई डॉट के इक्वल होगा, ठीक है ना. तो हम लोग यहाँ से वाई डॉट अगर निकालते हैं, देखिए वाई डॉट निकालोगे ना तो ये होगा L/2, ठीक है. दैट इज L/2 sin theta and theta dot, that is with negative sign. So theta at the moment it is about to strike the plane. Okay, y component of velocity theta की जगह pi by 2 पुट कर दोगे तो L/2 theta dot आ रहा है, ठीक है ना. That's what we are getting. Okay, तो इसीलिए velocity of hinge निकालेंगे ना, velocity of hinge तो इधर एक दूसरे स्लाइड में लिख देते हैं. तो velocity of hinge when it is about to strike the floor और plane जो भी लिखिए आप, ठीक है. so that is equal to y dot, इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं. so that is L/2 theta dot and sin यहाँ पे आ जा रहा है pi by 2, so that is 1. okay, तो L/2 हो गया ये and theta dot we have 3/2 root under g by L. okay, so that is root under 3/8 actually, ठीक है, और into g into L. L is 1 actually, so 3/8 and this is given to be 9.8. ठीक है, so this if you calculate it comes out to be 1.92, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड. That's what you get. Okay, so you can see here अगर ये 9 कैंसिल हम कर देते हैं इधर approximately ये 1.732 होता है, but it will be slightly more than 1 actually after cancellation, so that's why it will be close to 1.92. okay, now this is another question. This is from optics actually, polarization topic का question है. It says a pair of crossed ideal linear polarizers allow no light to pass through. So it means when there are two polarizer, cross polarizer, that means their path axes are at 90 degree, then no light passes through them. Okay, output intensity is 0. To produce some output, one can insert optical element between the cross polarizers for given light beam of input intensity. See, the light beam is not mentioned actually, whether it is what kind of light beam is. So we will assume that it is actually unpolarized light beam. ठीक है, हम इसको unpolarized light beam assume कर लेते हैं. Nirmalaya inserts quarter wave plate between the crossed polarizers and records output intensity alpha I naught. On the other hand, Ion inserts two linear polarizers having orientation 30 degree and 60 degree with respect to first polarizer of the cross pair and record output intensity beta I naught. And what is the value of alpha by beta? See, this question is incomplete actually. See, incomplete इस सेंस में है कि ये जो निर्मलाया इज इंसर्टिंग क्वार्टर वेव प्लेट, तो इसमें ये नहीं बताया कि क्वार्टर वेव प्लेट का जो ऑप्टिक एक्सिस है वो पोलराइजर के जो पास एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रहा है.
ठीक है, तो दैट इज नॉट गिवन। तो इसमें सिर्फ लिखा हुआ है निर्मला इंसर्ट्स क्वार्टर वेव प्लेट बिटवीन द क्रॉस पोलराइजर्स, so angle is not given, that's why this question is actually wrong। okay, फिर भी हम देखो इसमें बिटवीन बोला गया ना, तो हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री है, ठीक है, आंसर इसका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि देखो निर्मलाय के लिए वो ऐसा है, देखिए मान लेते हैं कि ये फर्स्ट पोलराइजर है P1 और ये सेकंड पोलराइजर है P2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वार्टर वेव प्लेट एक्जैक्टली 45 डिग्री पे मान लेते हैं क्योंकि उसमें दिया ही नहीं है एंगल, तो ये इसका ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट, ठीक है, ऐसा है। और इधर से मान लेते हैं कि अनपोलराइज लाइट आ रहा है, दिस इज अनपोलराइज लाइट, ठीक है ना, ऐसे अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट आप जानते हो पोलराइजर से पास करने के बाद प्लेन पोलराइज ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, दिस विल बी प्लेन पोलराइज लाइक दिस, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट थी, तो इसकी इंटेंसिटी इधर हाफ हो जाती है, तो आई नॉट बाई टू हो जाएगा। सो नाउ इट इज प्लेन पोलराइज लाइट एंड डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन इज मेकिंग 45 डिग्री विद क्वार्टर वेव प्लेट, सो दिस, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसको क्रॉस करने के बाद सर्कुलरली पोलराइज लाइट बन जाएगा और इसका इंटेंसिटी वही आई नॉट बाई टू रहेगा। सर्कुलरली पोलराइज लाइट जब यहाँ पे देखो किसी भी पोलराइजर से जब क्रॉस करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी अगेन हाफ हो जाता है, तो इसका इंटेंसिटी आई नॉट बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जानते हो देखो ये एंगल अगर 45 डिग्री नहीं होगा देन इट विल बिकम इलिप्टिकली पोलराइज लाइट, ठीक है। एंड इलिप्टिकली पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी डिपेंड करेगा कि एंगल कितना दिया हुआ है, सो इफ एंगल इज नॉट गिवन वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। इसलिए हम 45 डिग्री मानकर एज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना बेसिकली इंटेंसिटी बोला था कि अल्फा आई नॉट हो गया, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 1/4 हो गया इसमें, ठीक है, अल्फा इज 1/4, ठीक है। नाउ सेकंड केस, यू सी देयर आर टू पोलराइजर, दिस इज पोलराइजर P1 एंड दिस इज पोलराइजर P2, ठीक है ना। ये बेसिकली पास एक्सिस हम शो कर रहे हैं, ठीक है ना। दिस दिस इज हाउ आई विजुअलाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। इससे थोड़ा इजी होता है समझाने में भी, स्टूडेंट को भी ज्यादा बेटर समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये अनपोलराइज लाइट है, ठीक है ना, दिस इज अनपोलराइज लाइट और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, अगेन इट पासेस थ्रू इट, इट बिकम्स प्लेन पोलराइज लाइट एंड इट्स इंटेंसिटी बिकम्स आई नॉट बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पे दो पोलराइजर रखा गया है ऐसे, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे एक को रखा गया 30 डिग्री पे और एक को 60 डिग्री पे, मतलब ये भी 30 डिग्री है यहाँ पे और ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये इससे पास करेगा तो अकॉर्डिंग टू मैलस लॉ कॉस स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम देन पोलराइज्ड इन दिस डायरेक्शन। अब फिर इससे पास करेगा तो इट विल बिकम पोलराइज्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। फिर इससे पास करने के बाद पोलराइज्ड इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इंटेंसिटी आएगा ना तो देखो आई नॉट बाई टू यहाँ पे है, उसके बाद थ्री पोलराइजर से क्रॉस कर रहा है विच आर एट 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डायरेक्शन पोलराइजेशन, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कॉस क्यूब 30 डिग्री, ऐसा होगा। तो ये बेसिकली बन जाएगा आई नॉट बाई टू और इसका कॉस क्यूब करोगे तो ये 30 डिग्री से √3/2 होता है ना, तो ये इतना आ रहा है। सो दिस इज 3√3 और बाई 16 एक्चुअली आई नॉट। तो यहाँ पे बोला गया था बीटा आई नॉट हो जा रहा है, तो इसलिए बीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 3√3 और डिवाइड बाई 16 आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में अल्फा बाई बीटा निकालना था, तो अल्फा बाई बीटा निकालोगे ना, अल्फा बाई बीटा, तो बेसिकली ये 16 डिवाइड बाई 3√3 हो जाएगा और इंटू 1/4 होगा, तो बेसिकली ये 4 डिवाइड बाई 3√3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर मैच, मतलब जो आंसर की में दिया हुआ है उससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है ये इसका रीजन यही है कि ऑप्टिक एक्सिस जो है ना वो क्लियर नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये और कितने एंगल पे है वो दैट इज नॉट मेंशन, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। इट सेज ऑप्टिकल एक्सिटेशन ऑफ इंट्रिंसिक जर्मेनियम ऑपरेट्स ऑन एवरेज डेंसिटी ऑफ, क्या लिखा है, ऑप्टिकल एक्सिटेशन ऑफ इंट्रिंसिक जर्मेनियम क्रिएट्स एवरेज डेंसिटी ऑफ 10⁻12 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का जो दिया हुआ है डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे पर मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बोला गया वो इसकी मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन और होल, ये इलेक्ट्रॉन की भी डेंसिटी होगी और होल की भी डेंसिटी यही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ मोबिलिटी दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁴ SI यूनिट में है, ठीक है ना। और वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है दैट इज 100 वोल्ट, ठीक है। तो पूछा जा रहा है करंट कितना जनरेट होगा, तो पहले इसमें कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आप जानते हो Ne/μ होता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का मोबिलिटी सब कुछ इतना ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही होगा, होल का भी कंडक्टिविटी इतना ही है, ठीक है। सो दिस इज 10⁻18 और ये 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻19 और इंटू म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁴ और इंटू 2 हो गया, तो 2 और ये मल्टीप्लाई करे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों मल्टीप्लाई करके 10⁻1 तो 0.16 और इंटू 10⁴ आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी हो गया।
ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए करंट निकालना है, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वोल्टेज दिया हुआ है 100 और रेजिस्टेंस को आप ऐसे लिख सकते हो 1/कंडक्टिविटी और इंटू लेंथ बाई एरिया। ठीक है, तो ये 100 और इंटू सिग्मा इंटू एरिया और डिवाइडेड बाई लेंथ। तो इसमें 10⁻² है और सिग्मा की वैल्यू है 0.16 इंटू 10⁻⁴ और इंटू एरिया है 10⁻⁻⁴। ठीक है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया और लेंथ है 10⁻²। ठीक है, तो 10 ये सभी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1600 कितना एम्पियर। ये इतना आंसर आ रहा है। अब इसको मिली एम्पियर में बोला गया था लिखने के लिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 और 3 जीरो और लगा दो, तब मिली एम्पियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, दैट्स द आंसर। Okay, now this is another question. It says a particle can access only three energy levels: 1 electron volt, 2 electron volt, 6 electron volt. Average energy of the particle changes as temperature changes. What is the ratio of minimum energy, minimum to maximum average energy of the particle? ठीक है, देखिए इसमें 3 एनर्जी लेवल्स हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए मिनिमम में अगर टेम्परेचर टेंड्स टू जीरो कर देंगे, ठीक है ना, तो ऑल तो सिस्टम विल ट्राई टू ऑक्युपाई द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, तो सभी पार्टिकल जो है ना इसी स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है ना बेसिकली एवरेज एनर्जी बोला गया है ना, तो मतलब एवरेज एनर्जी सभी पर पार्टिकल जो निकलेगा वो बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, एवरेज एनर्जी बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन दैट केस होगा। ठीक है, तो टी टेंस टू जीरो में एवरेज एनर्जी जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, ये बोला गया ना एक पार्टिकल, तो अच्छा एक ही पार्टिकल है इसमें। ठीक है, देयर इज ओनली वन पार्टिकल, पार्टिकल इस स्टेट को ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है ना, पार्टिकल इस स्टेट को ऑक्युपाई करेगा टी टेंस टू जीरो में। अब देखो क्या होगा, एवरेज एनर्जी बस यही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब टी टेंस टू इन्फिनिटी अगर करोगे ना, तो एक्चुअली क्या होता है कि सभी स्टेट्स को ऑक्युपाई करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाती है। ठीक है ना, तो जितनी प्रोबेबिलिटी हाई टेम्परेचर पे ऑल स्टेट्स बिकम इक्वली प्रोबेबल। ओके, तो उस केस में टी टेंस टू इन्फिनिटी में ऑल स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं एवरेज एनर्जी ऐसे निकालते हैं पी आई और ई आई। ठीक है, तो सभी की प्रोबेबिलिटी वन थर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 1/3 और पी आई मतलब फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट सभी की प्रोबेबिलिटी वन थर्ड होगी, तो वन थर्ड तो कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 6। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, 6 2 8 9 और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज द एवरेज एनर्जी। ठीक है, फॉर व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये मैक्सिमम एवरेज एनर्जी हो गया और ये मिनिमम एनर्जी, दोनों का रेशियो निकालोगे ना, इसमें बोला गया ना रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मिनिमम एवरेज एनर्जी और मैक्सिमम ये निकल रहा है। ठीक है ना, हाईएस्ट टेम्परेचर पे, हाईएस्ट टेम्परेचर पे हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे मिनिमम टू मैक्सिमम, तो 1/3 आएगा। दिस इज 1 और दिस इज 3, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.33। दैट्स द आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, इट सेज ए सिस्टम ऑफ n क्लासिकल नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, इन वन डायमेंशन। देखो क्वेश्चन जो है ना वन डायमेंशन का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर 3 डायमेंशन में होता तो फिर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता। ठीक है ना, तो ये वन डायमेंशन का केस है। तो देखिए इसमें हैमिल्टोनियन ये दिया हुआ है, तो इसको आप क्या बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन लिख करके उसका एवरेज जैसे निकाला जाता है ना, उस मेथड से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज एनर्जी देखिए इसका अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम जो निकलता है ना, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इससे जो एवरेज एनर्जी निकलता है 1/2 केबीटी निकलता है। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे कोऑर्डिनेट का पावर 1/अल्फा है ना, तो ये 1/अल्फा केटी निकलेगा। ठीक है ना, सॉरी 1/अल्फा, 1/अल्फा केटी। ठीक है ना, ये दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, यहाँ पावर 2 था तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा है तो 1/अल्फा हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये क्यू की जगह पे आर अगर लिखा हुआ रहेगा ना तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, एक्स वाई जेड अगर लिखा हुआ है 1D जैसा केस है तो ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, बट आर का पावर अल्फा है तो 1/अल्फा नहीं आएगा। ठीक है, वो फिर समथिंग डिफरेंट आता है, वो कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज एनर्जी इज एक्चुअली 2/3। ठीक है ना, 2/3 n केबीटी, मतलब ये पर पार्टिकल निकाला है, अगर n पार्टिकल का निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो मतलब देखो इसको हम यहाँ पे जब लिखेंगे ना तो KBT, ये सब तो n तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास मतलब सिचुएशन ऐसा है कि 2/3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से 1/2 और प्लस 1/α। इसको इधर ले आओगे, ठीक है ना, तो इसको एलसीएम लोगे ना तो ऐसा हो जाएगा 1/6 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/α। 4 - 3, ठीक है ना, तो 4 - 3 1/6, तो अल्फा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये यहाँ पावर अल्फा दिया हुआ है, बोला गया एवरेज एनर्जी इतना है, तो अल्फा का वैल्यू निकालिए, तो बस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखा है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मूविंग इन a region of uniform magnetic field penetrates a layer of lead in the process loses half of its kinetic energy. The radius of curvature of path changes by a factor of, ठीक है ना। मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप जानते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ हो सकता है या हेलिकल पाथ हो सकता है, ठीक है ना। अ, हम रेडियस की बात की जा रही है ना, तो हम मान के चलते हैं चलो सर्कुलर पाथ हो रहा है, तो सर्कुलर पाथ में रेडियस का फॉर्मूला देखो ऐसा होता है P/QB। तो MV/QB लिखिए, P/QB। P/QB जो है ना रिलेटिविस्टिक केस में भी लग जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर रिलेटिविस्टिक एज वेल एज नॉन रिलेटिविस्टिक केस। ये बहुत मतलब थोड़ा सा यूनिक काइंड ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है, जो रिलेटिविस्टिक में भी अप्लाई होता है और नॉन रिलेटिविस्टिक में भी अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है ना, ये काइनेटिक एनर्जी के दैट इज 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज मच मच ग्रेटर देन रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन M0 C²। M0 C² आप जानते हो 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इससे बहुत ज्यादा है ये, ठीक है ना। तो हम काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली ऐसे लिखते हैं ना, रूट अंडर और ऐसे लिखते हैं देखो P²C² प्लस M0² और C⁴ माइनस M0 C²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो देखो के जानते हो मतलब क्या बोलते हैं, M0 C² से बहुत लार्ज तभी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए M0 C², यहाँ पे भी वही है, ठीक है ना। तो के बहुत लार्ज तभी हो सकता है व्हेन पीसी इटसेल्फ इज वेरी लार्ज। ओके, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पीसी जो है ना मच मच ग्रेटर देन M0 C² है ये एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए जो है ना के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पीसी हो जाएगा यहाँ पे। इस पीसी कंपैरिजन में इन सभी टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इसीलिए जो है ना हम पी की जगह पे K/C पुट कर देंगे यहाँ पे, तो रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा K/C और डिवाइड बाई QB, ठीक है। तो बेसिकली रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, तो के को अगर हाफ करोगे ना तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा। इफ के बिकम्स हाफ, ठीक है, रेडियस विल आल्सो बिकम हाफ, ठीक है। इसीलिए करेक्ट आंसर इसका हाफ आएगा, आंसर हो जाएगा हाफ, दैट इज द आंसर, ओके। ठीक है, नाउ दिस इज a क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिकल फिजिक्स। द क्वेश्चन सेज M इज a मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये पॉलीमैट्रिसेस है, ठीक है ना, ये सिग्मा जेड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि इसका हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो रूट एम निकालना है, रूट एम निकालने के लिए आपको जानते हो मतलब डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रूट एम स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स इजीली निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, बट रूट एम निकालने के लिए आपको डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एम लिखते हैं, देखिए एम जो है ना ये 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 0 0 1 और प्लस ये सिग्मा एक्स है, तो 0 1 1 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आयोटा है सिग्मा वाई 0 माइनस आयोटा आयोटा और 0 है, और प्लस सिग्मा जेड है, तो सिग्मा जेड इज 1 0 0 और -1 होता है, ठीक है ना। तो लेट अस ऐड ऑल दिस, ठीक है, तो इसको ऐड करोगे ना तो ये इधर से देखो 2 आ जाएगा और यहाँ पे एक 1 है, तो ये बन जाएगा 3, ठीक है ना। और इधर जो है बेसिकली यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0, इधर 0, इधर -1, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना, 1। और इधर तो देखो ये 0 है, यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आयोटा स्क्वायर से -1 यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर आ जाएगा हमारा, इधर से तो 0 है, यहाँ पे 1 है, और इधर से हमारा आयोटा स्क्वायर से 1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। दिस इज यू विल गेट M इक्वल टू दिस मच। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके आइगन वैल्यूज जो निकलेंगे ना लेमडा, वो डायगोनल एलिमेंट ही निकल जाएंगे, 3 और 1, ठीक है। अब हम 3 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसके आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है, आइगन वेक्टर्स। इसके आइगन वेक्टर्स आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना। इसका आइगन वेक्टर्स निकलेंगे 1 0 और 1 और -1, ये इसके आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के लिए जो हम लोग पी मैट्रिक्स बनाते हैं, वो पी मैट्रिक्स यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा 1 0 और 1 और -1, ठीक है। ये जो आइगन वेक्टर्स निकल रहे हैं उसी को हम इसके कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है ना।
तो P ये निकल जाएगा। तो अब हम इससे P इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है ना, P इनवर्स। ठीक है, तो P इनवर्स आप इसका निकालेंगे। तो जैसे P इनवर्स निकालते हो आप, एडजॉइंट इसका निकालिए पहले, ठीक है ना। तो एडजॉइंट निकालेंगे तो यहाँ पे बेसिकली -1, ठीक है ना, फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0 और इसमें 1, इसका ट्रांसपोज लेना होगा, ठीक है ना। और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, डिटर्मिनेंट इज -1। तो ये बेसिकली ये सब प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका हम लोग, तो ये इसका 1 1 और 0 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका इनवर्स आ गया, आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे, आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। ये P इनवर्स इतना निकल रहा है, ठीक है ना, दैट इज P इनवर्स। तो वी हैव कैलकुलेटेड P, वी हैव कैलकुलेटेड P इनवर्स, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए M, ठीक है। तो एम मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एम मैट्रिक्स जो होगा ना, वो बेसिकली वी कैन राइट इट एज पी इंटू सम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, और इंटू पी इनवर्स, ठीक है। वी कैन राइट लाइक दिस। तो यहाँ पे रूट एम अगर हमें लिखना है ना, तो पी और यहाँ पे रूट डी हो जाएगा, ठीक है ना, और ये पी इनवर्स, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स जब निकालोगे तो डायगोनल में तो 3 और 1 ही आएगा, क्योंकि आइगन वैल्यूज इसके इतने हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये रूट एम जो होगा वो बेसिकली पी मैट्रिक्स हमारा कितना निकला हुआ है, पी मैट्रिक्स इज दिस इज 1 1 0। इसका ये भी इतना ही निकला है क्या, एक बार चेक कर लोगे हम, कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, बट मेथड विल बी द विल बी दिस एक्चुअली, ठीक है ना, यही मेथड है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए ये 1 1 और 0 -1 निकला हुआ है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में हो जाएगा √3 0 0 और 1, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट का रूट बस लग जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसका इनवर्स भी इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। इनवर्स इज ऑल्सो सेम। मल्टीप्लाई करके देख लो, आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, ठीक है, ये यही आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा ये एम मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में था यहाँ पे कि हमें एम मैट्रिक्स का एक्सपेक्टेशन, मतलब मैट्रिक्स ये निकालना है, यू और वी के रिस्पेक्ट में ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल देना है, ठीक है ना। तो इधर यू यू ये लिखना होगा और वी इधर से ये लिख देंगे, ठीक है। तो लेट्स डू दैट, ओके। तो हम लोग एम ये आ गया, अब हम रूट एम, और इधर लिखा हुआ है यू और इधर लिखा हुआ है वी। तो यू जो लिखा गया है ना यहाँ पे, वो बेसिकली 0 और 1 है, 0 1 है, ये 1 0 है, देखें। दिस इज यू इज 1 0, अच्छा 1 0 है ये। इसका कुछ शॉर्ट मेथड भी हो सकता है आई थिंक, ठीक है। अभी हमने ज्यादा सोचे नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है ना यहाँ पे 1 0 है ये, ठीक है। और इधर से हमारा ये आ जाएगा 1 1 और 0 -1, और इधर से हो गया √3 0 0 1, और ये हो जाएगा हमारा 1 1 और 0 -1, और इधर से भी हमारा है 1 और -1, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही कर देते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कॉलम मल्टीप्लाइज विद दिस रो, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस कॉलम मल्टीप्लाइज विद दिस रो, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो 1, सॉरी, तो ये कॉल रो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। तो 1 1 आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया √3 0 0 1, ठीक है। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये 1 और 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 0, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये 1 आ रहा है, दैट्स द आंसर, ठीक है। आंसर इसका 1 है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। इट सेज, सो only 5 questions are left now, okay, out of which 2 3 are basically from electronics. So the frequency of dispersion relation of the surface, ये dispersion relation दिया हुआ है ये, ठीक है ना। wave of a fluid of density rho at temperature T is given by this, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि
The first term in RHS describes the gravity waves and the second term surface tension wave. What is the ratio of first term to the second term when phase velocity is equal to group velocity? देखिए इसमें ऐसा दिया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो हमें फेज वेलोसिटी निकालना है वीपी। हम जानते हैं ओमेगा बाई के होता है, तो हम ऐसा करते हैं इसको दोनों साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई कर, मतलब ओमेगा का वैल्यू लिखोगे ना तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, जी के और प्लस टी के क्यूब और बाई ओमेगा, ये और बाई के, ठीक है ना। देखिए हम यहाँ से ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा इंटू ओमेगा लिखेंगे, तो एक ओमेगा नीचे कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो के से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा जी और प्लस इधर है, अच्छा उस हमसे लिखने में गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें क्यूब नहीं है, इसमें टी क्यूब के क्यूब है और इंटू टी है, ठीक है ना। और फिर इधर से डिवाइडेड बाय यहाँ पे रो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें डिवाइड बाय रो है, ठीक है। हमने यहाँ पे, तो ये हमने निकाल लिया, ठीक है। के से डिवाइड कर दोगे ना तो ये के स्क्वायर और इंटू टी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय रो, और फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय ओमेगा तो है ही है, ठीक है ना। तो ये वीपी निकल गया। अब वीजी जब निकालेंगे ना, वीजी इज इक्वल टू, तो ये होगा डी ओमेगा बाई डी के। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस रिलेशन को पहले ओमेगा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो ये बेसिकली हमें ऐसा देगा, ये जो रिलेशन है ना, ये टू ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी के, सॉरी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो जी प्लस और यहाँ पे आ जाएगा थ्री के स्क्वायर और इंटू टी और बाई रो, ऐसा आ जाएगा। तो ये ओमेगा से नीचे को नीचे ले आओगे तो डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू जी प्लस थ्री के स्क्वायर और इंटू टी बाई रो और डिवाइड बाई टू ओमेगा। तो ये हो गया बेसिकली हमारा ग्रुप वेलोसिटी। क्वेश्चन में बोला गया है ग्रुप और फेज वेलोसिटी दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी दिया हुआ है, फेज वेलोसिटी ये है हमारे पास जी प्लस के स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाई रो, ठीक है ना, ये टी है और डिवाइड बाई ओमेगा। और ग्रुप वेलोसिटी जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू, हियर इट इज जी प्लस थ्री के स्क्वायर और इंटू टी और डिवाइडेड बाई रो और डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, टू ओमेगा। दैट्स व्हाट वी हैव। सो ओमेगा ओमेगा तो इधर से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखो इधर लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा टू जी प्लस के स्क्वायर और इंटू टू के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर टी बाई रो इज इक्वल टू जी प्लस थ्री के स्क्वायर और इंटू टी बाई रो। तो जी वाला टर्म इधर कर दोगे तो जी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जा रहा है के स्क्वायर और इंटू टी बाई रो, तो दोनों साइड के से मल्टीप्लाई कर दो तो जी इंटू के इज इक्वल टू के क्यूब और इंटू टी बाई रो हो गया। तो आप देखिए फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी को जब हम इक्वल किए ना तो जी के इक्वल टू के क्यूब टी बाई रो आ गया। तो यहाँ पे देखो जी के फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म के क्यूब इंटू टी बाई रो है, तो दोनों इक्वल आ गया, तो इसका मतलब दोनों टर्म का रेशियो जो है ना वन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला गया ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द सेकंड टर्म व्हेन फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म हम देखो इक्वल शो कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेशियो कितना होगा, तो इस रेशियो का वैल्यू होगा रेशियो इज इक्वल टू वन, दैट्स द आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ये डिजिटल का क्वेश्चन है, तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब ये वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अच्छा क्वेश्चन छूट गया, वो एक पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन क्वेश्चन था, वो कहाँ चला गया। अच्छा क्वेश्चन छूटा है इसमें, अभी हम वापस आएंगे देखते हैं कहाँ पे छूटा है वो क्वेश्चन, सर्कुलर पोलराइजेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट, यही था ना, ये तो डिजिटल का है, दिस वन। इट सेज वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस undergoes a thermodynamic cycle formed by an isobaric process, an isoporic process and adiabatic process। देखिए ये हमारा ऐसा प्रोसेस, इसमें ऐसा दिया हुआ है, ये तो डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये है प्रोसेस, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया और सी से डी तक गया, ये ऐसा है। तो ये जो है ना एडियाबेटिक लाइन है, दिस इज एडियाबेटिक लाइन, ओके, मतलब ए पॉइंट ए और पॉइंट सी एक एडियाबेटिक लाइन पे है, एडियाबेट पे, ठीक है ना। तो ये एडियाबेटिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा पी ए एंड वी ए टू द पावर गामा शुड बी इक्वल टू पी सी एंड वी सी टू द पावर गामा, ऐसा होना चाहिए। तो पी ए देखिए यहाँ पे 32 पी दिया हुआ है और वॉल्यूम वी ए जो है ना वी दिया हुआ है, तो टू द पावर गामा हो जाएगा इज इक्वल टू पी सी, पी पे जो प्रेशर है वो पी है और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 8 वी है, तो 8 वी टू द पावर गामा हो जाएगा,
ऐसा। पीओपी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, वी वी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 8 टू द पावर गामा, ठीक है। तो एल एन ले लो यहाँ पे, तो इसीलिए गामा इज इक्वल टू आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू एल एन 32 और डिवाइड बाई एल एन 8। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल एन और 2 टू द पावर 5 और डिवाइड बाई एल एन और 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये बेसिकली 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू 5/3 आ गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि गामा इज इक्वल टू होता है 1 + 2/f, सॉरी 2/f, ठीक है ना। तो गामा हमारा 5/3 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 1 + 2/f। तो इसको इस साइड माइनस साइड करोगे ना, तो f इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस गैस, आइडियल गैस इज 3 एक्चुअली, मोनोएटॉमिक गैस है ये, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है देखो इसमें कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ RT एज द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक गया, ए से बी तक, तो ए से बी तक जाएगा ना, तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिंपली ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो F/2 और 1 मोल है, तो ओके, और इंटू NR, 1 लिख दिए मोल के लिए, ठीक है ना, और इंटू डेल्टा टी, F/2 NR∆T, ये होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो F की जगह पे 3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हो गया R, और डेल्टा टी तो टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ए लिख दोगे, तो 3/2 और आर, टेम्परेचर ऑफ बी को ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ बी, ठीक है ना, और इनटू वॉल्यूम ऑफ बी और बाय आर, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया, ठीक है ना। एन की जगह तो 1 है, और यहाँ पे तो टेम्परेचर ऑफ ए को तो टी लिखना ही है हमें, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है टेम्परेचर ऑफ, है ना, एट ए टेम्परेचर इज टी। मतलब टी जो है ना यहाँ पे, देखिए ऐसा होगा कि ए पे, ए पॉइंट पे आप देखिए प्रेशर कितना है 32, तो ऐसा हो जाएगा बेसिकली पीवी, तो पी की जगह 32 पी लिखेंगे, ऐसे 32 पी, और वॉल्यूम वी है और बाई आर, तो 32 पीवी/आर की जगह टी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी पीवी/आर की जगह पे 30 T/32 लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ए के लिए हम यूज कर सकते हैं, देखो पॉइंट ए पे 32 पी है प्रेशर, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पीवी/आर इज इक्वल टू टी, ठीक है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यहाँ से आप देखिए 3/2 R हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर एट बी, तो ये भी तो वही है 32 है इंटू 32 पी है प्रेशर, और वॉल्यूम 8 भी है, ठीक है ना, बाई आर, माइनस ये टी आ जाएगा। तो देखो 32 पीवी/आर की जगह टी लिख सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 R, ठीक है ना, और यहाँ पे 8 टी या माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि 8 बच जाएगा, 32 पीवी/आर की जगह टी लिख देंगे, तो ये 7 टी हो गया, ठीक है। तो ये 21/2 हो जाएगा, 21/2 RT, 21/2 जो है ना वो 10.5 हो जाएगा, 10.5 RT, दैट्स द आंसर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 10.5, ठीक है, दैट्स द आंसर। देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एक मैकेनिक्स का, इसमें लिखा गया है 2 आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ हाइट L/2। अच्छा, कनेक्टेड बाय स्प्रिंग एट हाइट L/2 हाइट पे कनेक्ट किया हुआ है, एज शोन इन फिगर। assuming spring constant to be mg/L, mg/L ये k का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज k, where m is the mass of the bob, g is the acceleration due to gravity. What is the ratio of lowest eigen frequency to of the system? हाईएस्ट टू लोएस्ट आइगन फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हम लग्रांज मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिखकर लग्रांजियन मेथड से फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स निकालकर हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर ये क्वेश्चन जानते हो शायद 1 नंबर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन थोड़ा रिशफल हो गया है, दिस वाज आस्क्ड इन 1 मार्क्स। 1 मार्क्स में उतना आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। इनफैक्ट हमने इसको करके देखा है, उस मेथड से भी इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर, ठीक है, बाय दैट मेथड ऑल्सो। लेकिन जब हमने सोचा कि इसको उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हियर ए शॉर्टर मेथड, एक शॉर्टर मेथड है इसमें, ठीक है ना। देखिए इसमें एक्चुअली डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम का 2 है, ठीक है, तो देयर विल बी 2 मोड्स ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उतना ही नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ऑसिलेशन होगा, ठीक है, इफ देयर इज नो ट्रांसलेशन और रोटेशन पॉसिबल फॉर द सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम का एज अ होल ट्रांसलेशन या एज अ होल रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ मोड्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज 2 हियर, तो 2 मोड्स होंगे। तो एक मोड में क्या होगा कि दोनों पार्टिकल इन फेज ऑसिलेट करेंगे और एक में आउट ऑफ फेज ऑसिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो एक ऑसिलेशन इसमें ऐसा होगा, देखिए जैसे एक बॉब इधर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो दूसरा भी इधर ही डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना, ऐसा।
बोथ विल डिफ्लेक्ट इन सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग है, तो जितना ये डिफ्लेक्ट होगा उतना ही ये डिफ्लेक्ट होगा, इसमें कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं होगा, तो मतलब स्प्रिंग का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, वैसे ही ऑसिलेट करेंगे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट विल बी सिंपली रूट अंडर जी बाई एल। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई स्प्रिंग का रोल नहीं होगा व्हेन दे ऑसिलेट इन फेज, ये इन फेज ऑसिलेशन है, इन फेज ऑसिलेशन। ठीक है, और एक ऑसिलेशन होगा आउट ऑफ फेज ऑसिलेशन, तो आउट ऑफ फेज ऑसिलेशन में ऐसा होगा, देखिए कि एक जो है ना इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा अब यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में देखिए नीचे जैसे mg लग रहा है, तो यहाँ पे स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है ना, मान लो kx लगे, थोड़ा सा टिल्टेड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है ना, तो हम लोग ऐसे करके kx दिखा देते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, मैं ऐसे रफली दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो या आप ऐसे ही दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है ना, यू कैन शो इट लाइक दिस। ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री माउंट करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे k इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, दिस एंगल इज सपोज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज थीटा। ठीक है, तो यहां से यहां तक देखिए ये एल है, तो यहाँ पे जो इलोंगेशन मतलब इसके डिफ्लेक्शन, जैसे ये इधर डिफ्लेक्ट हुआ है ना, तो ये जो इलोंगेशन होगा ये L/2 है ये लेंथ। ओके, तो ये L/2 और साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो आप स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है ना। तो हम ये L/2 थीटा है डिफ्लेक्शन, तो इसमें x जो होगा ना, क्योंकि इधर भी उतना ही डिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो इधर से इलोंगेशन हुआ L/2 थीटा और इधर से भी उतना ही आएगा, तो x इक्वल टू एल थीटा होगा एक्चुअली, x इज इक्वल टू एल थीटा। ठीक है, तो हम लोग जब इसका इक्वेशन मोशन लिखेंगे ना, देखो इक्वेशन मोशन ऐसा होगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क एक तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये इस पॉइंट के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ एल है, तो ये डिस्टेंस निकलेगा एल साइन थीटा। तो फिर वही बात है, साइन थीटा को स्मॉल कर दोगे तो ये एल थीटा हो जाएगा, तो टॉर्क आप लिखोगे ना, तो फोर्स हो जाएगा mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल थीटा हो जाएगा, ये नेगेटिव में, ठीक है ना। और एक टॉर्क तो ये हो गया, और एक टॉर्क इसकी वजह से लगेगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो k इंटू एक्स हो गया फोर्स, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ना वो L/2 हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी करोगे ना तो आंसर यही आएगा, हम अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, तो फोर्स लग गया और ये डिस्टेंस लगभग, ये एक्चुअली L/2 कॉस थीटा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब थीटा टेंस टू जीरो में कॉस जीरो वन हो जाएगा ना, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये L/2 आएगा। ठीक है, तो यहां से एक फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L/2 कॉस थीटा होगा, थीटा जीरो में कॉस को वन कर देंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रफली L/2 आएगा। तो ये दूसरा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, तो पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यही होगा ml स्क्वायर, ठीक है, और इंटू अल्फा को आप लिख दोगे थीटा डबल डॉट। ठीक है, अब हम लोग k का वैल्यू इसमें बोला गया है mg/l है, तो mg/l यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है ना, तो देखो mg/l पुट करेंगे तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, और x की जगह पे एल थीटा लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस mg/l और थीटा, और माइनस ये देखो k का वैल्यू लिख रहे हैं mg/l, और इसकी जगह एल थीटा लिख देंगे, और ये L/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू ml स्क्वायर और इंटू थीटा। तो यहाँ से देखो क्या होगा कि एल एल कैंसिल हो गया, mg/l/2, तो ये बेसिकली -3g/2l और इंटू थीटा इज इक्वल टू थीटा डबल डॉट आएगा, ठीक है ना। तो ये जो 3g/l 2l आ रहा है ना यहाँ पे, 3g/2l, वो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां से जो ओमेगा निकल रहा है इससे, इस केस में आउट ऑफ फेज ऑसिलेशन ओमेगा जो निकलेगा दैट इज रूट अंडर 3g/2l। ठीक है, 3g/2l, तो अब देखिए इस ये मैक्सिमम ओमेगा हो गया और ये मिनिमम ओमेगा, दोनों का रेशियो करोगे ना तो g/l कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इज द आंसर। ठीक है, 3/2 आंसर है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन तो सारे हो गए, वो एक क्वेश्चन छूट गया अभी, जस्ट एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन कहाँ छूटा है, क्वेश्चन तो था वो भी। अच्छा, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे छूटा हुआ क्वेश्चन है, ये एक छूटा हुआ है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन एक छूट गया था, देखो दिस वन। ठीक है, इसमें लिखा गया है सर्कुलरली पोलराइज्ड लेजर पावर p इज इंसिडेंट ऑन ए particle of mass m, particle which was initially at rest completely absorbs the incident radiation, kinetic energy of the particle as a function of time t is given by, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इनिशियली आई थॉट दिस इज अ रिलेटिविस्टिक क्वेश्चन, तो हम इसको रिलेटिविस्टिक मेथड से सॉल्व कर रहे थे, बट आंसर जो है ना मैच नहीं कर रहा था, रिलेटिविस्टिक मेथड में हायर पावर ऑफ
पी भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे पी स्क्वायर आ रहा है ना, पीओपी मल्टीप्लाई होने पे, इफ यू सॉल्व इट बाय रिलेटिविस्टिक मेथड यू विल गेट हायर पावर ऑफ पी। ओके, तो ये क्वेश्चन रिलेटिविस्टिक मेथड, क्योंकि सी जब इन्वॉल्व होता है ना तो जनरली ऐसा लगता है कि ये फोटोन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो दैट इज जनरली क्वेश्चन ऑफ रिलेटिविस्टिक, वो रिलेटिविस्टिक फेनोमेना होता है बेसिकली, ठीक है, लेकिन ये रिलेटिविस्टिक मेथड से सॉल्व हो नहीं रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच से फिर सॉल्व किया गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि पावर पी है, तो टी टाइम तक अगर हम लोग लेजर लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो एनर्जी जो सप्लाई होगा ना वो बेसिकली पी इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि पावर इंटू टाइम एनर्जी हो जाता है, और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसको सी से डिवाइड कर दोगे तो मोमेंटम हो जाएगा। तो आप इसमें मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन टाइम टी, तो टी टाइम में जो मोमेंटम ट्रांसफर होगा, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू टी और बाई सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड अगर आप लिखेंगे, दैट विल बिकम इक्वल टू, हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हैं ना, मोमेंटम, इसको मान लो स्मॉल पी लिख देते हैं मोमेंटम को, तो पी स्क्वायर अपॉन टू एम होता है, ठीक है ना, ये नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, तो वही देखो यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम, और ये यहाँ से सी स्क्वायर आ जाएगा, ये सी स्क्वायर, पी स्क्वायर टी स्क्वायर टू एम सी स्क्वायर, तो ऐसा टर्म आप देखिए दो जगह प्रेजेंट है, पहले वाले में प्रेजेंट है और दूसरे वाले में प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करोगे इसमें माइनस एक टर्म आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, अच्छा इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो चलो आ गया, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर इतना आ गया, लेकिन इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे कि सर्कुलरली पोलराइज्ड है ये, तो ये एक तरह से मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप अप्लाई कर रहे हो कि जो मोमेंटम था वो दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो गया, सो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है ना तो इसमें एक एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है ना, तो सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जो होता है, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, इसका एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली एच क्रॉस होता है, ठीक है, दैट इज एच क्रॉस। तो ये अपना एंगुलर मोमेंटम भी पार्टिकल को ट्रांसफर ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, तो ठीक है, तो कितना एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा वो, तो जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो ट्रांसफर कर देगा, तो ठीक है, तो बेसिकली एक फोटोन का एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो बेसिकली एच क्रॉस होता है, तो अगर मान लीजिए एन फोटोन टी टाइम में इंसिडेंट किया तो एन एच क्रॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा हुआ कि एन एच क्रॉस एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा वो, ठीक है ना। तो हम अगर मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे मोमेंटम निकाले कि मोमेंटम इतना ट्रांसफर करा उसको यूज करके एनर्जी निकाली, अब एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर किया ना तो उसकी वजह से पार्टिकल ऐसे स्पिन करेगा, ठीक है ना, पार्टिकल विल स्टार्ट स्पिनिंग, ठीक है, मतलब जैसे ये ऐसे लेजर लाइट है, ये इसके ऊपर इंसिडेंट किया तो पार्टिकल विल स्टार्ट स्पिनिंग, ओके। तो अब स्पिनिंग की वजह से इसमें एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन टू आई, दैट इज आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें दिया हुआ नहीं है तो हमें कुछ अल्टरनेट मेथड थिंक करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखिए, एन एच क्रॉस बेसिकली यहाँ पे एन एच क्रॉस आप ये कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम इस एच क्रॉस को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर के इक्वल हो जाएगा। एक्चुअली सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में जो है ना दो बीम होता है, ठीक है ना, तो एक बीम में एच क्रॉस ओमेगा जो होता है वो बेसिकली एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, टू बीम है ना तो इसलिए टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि टू, देर आर टू बीम्स, ओके, तो टू बीम्स, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट इज बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, तो इसलिए टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब देखिए एनर्जी ट्रांसफर हम लोग अभी निकाल रहे थे ना कि टी टाइम में एनर्जी ट्रांसफर जो होगा पी इंटू टी हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ से देखो एच क्रॉस ओमेगा जो आ रहा है ना, बेसिकली एन एच क्रॉस ओमेगा वो बेसिकली पी इंटू टी आ गया, ठीक है ना, बाई टू आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि अगर जैसे एन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी जो है बेसिकली एन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी आप जानते हो एच क्रॉस ओमेगा होता है, तो एन फोटोन अगर ट्रांसफर हुआ तभी बेसिकली एन एच क्रॉस एंगुलर मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो एन फोटोन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी ट्रांसफर जो आ रहा है ना वो पीटी बाई टू आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब टोटल टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर जो निकलेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो ये जो है ना उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, पहले से निकला हुआ है हमारा पी स्क्वायर टी स्क्वायर और डिवाइड बाय टू एम इंटू सी स्क्वायर और प्लस ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा पी टी बाई टू, ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों का सम जो है ना ये फर्स्ट ऑप्शन के इक्वल आएगा, ठीक है।
So that's the answer. Okay. So this is the solution of all the questions, okay, except the questions of electronics. I'll ask the electronics teacher to make a video of those three questions of electronics, and we'll upload solution of those questions later on. Okay. So let's stop here now.